हेलो प्रणाम नमस्कार। तत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं सस्टेनेबिलिटी विद प्राची का ग्रीन तत्वा टॉक्स पॉडकास्ट। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी, द हेडिंग ऑफ विच वाज एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज शॉर्टनिंग लाइव्स बाय 10 years, कैन बायोएंजाइम्स हेल्प? और ये हेडिंग ने मुझे वो पूरा आर्टिकल पढ़ने को मजबूर किया। So we all know like places like Delhi, which are most polluted major cities with an AQI level higher. Now, air pollution levels जो बहुत ज़्यादा सरपास हो गया है, उसके लिए बहुत सी चीजें की जा रही हैं. There are a lot of things which are being taken care of. And now, to address the problem of air pollution, biological methods are being considered due to their higher efficiency, biocompatibility, and of course for being environment friendly. And among these bioremediation methods, enzymes play a crucial role in remedying different types of organic and inorganic pollutants. It is also possible to engineer the enzymes to enhance their efficiency and stability for special conditions. Bioenzymes, या जिसे biological enzymes भी कहते हैं, are organic molecules produced by microorganisms such as bacteria, yeast, fungi, and algae. Now, Delhi is now exploring the use of biological enzymes to bring down air pollution. और ये कोई नई चीज नहीं है. This is already being tried in other states of India. Maybe not for the same purpose. Like back in early 2023, some farmers in Punjab came together and with the help of state's horticulture department went on a mission to use biological enzymes as an alternative to chemical fertilizer, as the degraded soil and polluted air and water affected the local environment. And even in some farms, the bioenzymes have replaced chemical fertilizers completely. There are several reasons for using bioenzymes. They are safe than chemicals currently in use. They don't leave behind toxic residues. They also repel pests and small insects without having any side effects. Moreover, bioenzymes have the ability to enhance photosynthesis in plants and increase their flowering fruit. Now, are bioenzymes really making this impact? इसी को स्टडी करने के लिए दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ which was conducted with bioenzymes in the northern part of the city. The pilot project showed encouraging results in the form of 30% to 55% decrease in particulate matter. And this is possibly the first instance of using this method to combat air pollution in India. During this experiment, biological enzymes were dissolved in water in 1:5000 ratio to create a solution, which was then sprayed in selected regions via anti-smog guns provided by MCD and PW. And using biological enzymes in an innovative approach to tackle air pollution, there was certainly a decrease. Experts are now calling for a need to review it and study its impact on ecology and meteorological conditions to ensure that it is in fact safe for humans and animals alike. Conclusion ये निकला था कि Delhi severe air pollution marked by PM 2.5 levels far exceeding both national and international standard came down a bit. Study even showed कि वहां पर उस टाइम पर स्प्रे होने के बाद 32% drop in PM 10 levels and 55% decrease in PM 2.5 levels on average देखा गया. So these enzymes produced by fermenting organic waste have shown promise in initial experiments, reducing particulate matter pollution significantly. So this innovative approach, may be costly, reflects a growing recognition of the need for diverse and sustainable solutions to tackle the pressing issue of pollution and its dire consequences on public health. अब जब मैं बात कर रही हूँ डाइवर्स एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, तो इसे न्यूज के चलते आज ग्रीन तत्वा टॉक्स पर मेरे साथ है नीलिमा मोहित. She is a sustainable living practitioner, a mom of 2 beautiful kids who loves to demonstrate, educate and provide the solutions to live a sustainable life with composting, bioenzyme and birth and bank as she has learned through her experiences. तो इसी जानकारी को और जानने के लिए सबसे पहले हम बुलाते हैं नीलिमा को ऑन ग्रीन तत्वा टॉक्स स्टूडियो. Hey Nilima, how are you? Hi, I'm good. Good day to Welcome. you too.
थैंक यू, वेलकम टू ग्रीन तत्वा टॉक्स। आई एम श्योर बारिश हो रही होगी आपके यहाँ भी। अभी थोड़ी रुकी है तो पसीने आ रहे हैं, बट इट वाज नाइस। थैंकफुली बारिश आ गई है बॉम्बे में। वंडरफुल वंडरफुल, वंस अगेन वेलकम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं नीलिमा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि नीलिमा इज अ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिशनर एंड विथ हर वेबसाइट sunilima.in she loves to demonstrate and educate about these sustainable practices. She also has her sustainable solutions handle by the name Sunilima Sustainable Solutions, which she started as a venture for providing these sustainable solutions, where she showcases products of, as I said, composting, bioenzyme and बर्तन बैग यानी कि कटलरी ऑन रेंट। सो नीलिमा, ये बताओ कि ये सब सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए या कंपोस्टिंग या बायो एंजाइम से जुड़ना, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? आई मीन, व्हाट वाज देयर एनी इवेंट, वाज देयर एनी मोमेंट, या ऐसा कुछ बहुत सालों से दिमाग में था? व्हाट आस्क्ड यू और व्हाट मेड यू थिंक ऑफ starting this Soon Nilima Sustainable Solutions? Okay. I am a normal person, housewife bolo, mom of two bolo. So I have been like a normal person, trying out different things. जैसे ट्रेंड आया, इवन आई हैव बीन गिल्टी ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाए हैं, वो काले वाले बैग्स लाए हैं फॉर योर डस्टबिन्स, लाइनर्स। आई बॉट फॉइल के डब्बे इन थाउजेंड्स के लॉट्स में, बिकॉज आई डिडंट नो बेटर। बट एज एंड वेन द अवेयरनेस हैज स्टार्टेड कमिंग इन, कि जहां जहां आर्टिकल्स पढ़े, किसी के टॉक सुने या कहीं न्यूज़पेपर ये बड़ा हेडलाइंस एंड ऑल दैट, आई गॉट टू नो। एंड थैंकफुली नाउ डेज विद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये सब के बारे में जब जानकारी मिलने लगी, तो आई वॉज लाइक, ओ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, ये गलत है और इसको करने के लिए सोल्यूशंस भी है। सो व्हाट कैन वी डू ऑन योर ओन लेवल? तो आई स्टार्टेड, दैट्स व्हाई आई मेंशन एवरीवेयर थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने भी, आई हैव सीन बोथ साइड्स। मैंने ये उल्टा करके भी देखा है, एंड आई हैव सीन कि अगेन बोलते ना, पुण्य पाप जो भी है कर लिया है। सो नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट जितना हो सके। सो इफ आई सी, आई दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग माई सेल्फ, एनालाइजिंग माई सेल्फ, कि पहले लाइक फॉर माई सन, व्हेन माई सन ओल्डर वन ही वाज बोर्न, मैंने डाइपर्स यूज किए हैं। आई डेंट नो एनी अदर, बहुत कम यूज किए, बट है यूज किया, अभी भी मुझे वो गिल्ट होती है। सो व्हेन माई डॉटर वाज, आई वाज प्रेग्नेंट विथ हर, I got to know about cloth diapers, so I started using those. फिर उसमें से I started learning about composting. Thankfully, again, social media में there are friends who have been doing it so much कि उनका देख देख के कभी मन करता था कि ट्राई तो करके देखते हैं। So slowly these small habits I started incorporating in my life कि चलो ट्राई करके तो देखते हैं, let's give it a try. एंड कैसे हो रहा है, तो उसमें भी यू फेल समटाइम्स, यू समटाइम्स सक्सीड, बहुत अच्छे से चलता है, फिर सडनली ब्रेक हो जाता है, या तो फेल होते हैं, फिर से यू हैव टू स्टार्ट रीस्टार्ट, या तो बीच में हम लोग छोड़ ही देते हैं पूरा करना। सो ये सब फेजेस से इवन आई हैव गॉन, एंड वॉट एवर माई लर्निंग्स, सो आई ट्राई टू गिव इट टू जितने लोग सुनने के लिए तैयार है। सो आई ट्राई टू गिव इट टू देम। सो माई नाउअडेज मोटो इज वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। एक ही चीज कर लो, उसको पकड़ के जितना आप करो, जब तक आपको लगता नहीं कि आप गॉट इट करेक्ट, वो करो, एंड देन यू गो। एंड रोज एक ही दिन में सब कुछ मत करने को जाओ, बिकॉज देन इट बिकम्स ओवरवेलमिंग, एंड देन पीपल स्टॉप टोटली कि यार ये प्लास्टिक भी बंद करना है, ये भी करना है, कंपोस्टिंग भी करना है, बहुत हो जाता है, वो नहीं होता है। एक इंडिविजुअल करना है तो भी चल जाएगा, चेंजिंग योर एंटायर फैमिली अराउंड इट बहुत मुश्किल है। सो अभी इवन नाउ आई कैंट से दैट्स व्हाई आई एम स्टिल अ प्रैक्टिशनर, इवन आफ्टर डूइंग इट फॉर 4-5 years, ऐसे आई एम प्रैक्टिशनर, बिकॉज एक दिन मेरा होता है, दूसरे दिन माई फैमिली विल डू समथिंग उल्टा, रिवर्स ऑफ टोटल दिस, एंड दैट टाइम आई एम हेल्पलेस ऑल्सो, कुछ नहीं कर सकते। सो समटाइम आई एम लाइक, इट्स ओके, वी ट्राई आवर बेस्ट, एवरी डे वी डू समथिंग बेटर, दैट्स इट। एंड जैसे आएगा वैसे वन डे एट अ टाइम जाते जाओ। सो दैट वीज, एंड अगेन एक्सपीरियंसेस जो भी आएंगे, एंड अगेन थ्रू माई जर्नी, लाइक कंपोस्टिंग में आई गॉट टू नो कि लोगों को आप एक्टिविस्ट की तरह बोलने को जाओ, प्लास्टिक बुरा है, प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, पीपल गेट ऑफेंडेड एंड देन दे रेजिस्ट, फिर वो सुनना ही बंद कर देते हैं। उससे अच्छा उनको आप सोल्यूशन दो, यू शो देम हाउ टू यूज इट, क्यों उसके बेनिफिट्स है, एंड देन यू शो देम द प्रॉब्लम, देन दे आर मोर रिसेप्टिव टू लिसन एंड ट्राई आउट। फिर बोलते हैं अच्छा ये कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, और उसने तो सोल्यूशन भी लाके दिया है, तो क्या ही हर्ज है करने में, तो ट्राई करते हैं। तो कोई भी होगा, अभी मेरे यहाँ सोसाइटी में पूरा वेस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में कंटिन्यूसली डोर टू डोर जाके समझा रही थी 2 साल से। सो पीपल आर लाइक रेजिस्टेंट कि नहीं नहीं, हमको तो वो ब्लैक बैग्स लगानी ही, लाइनर्स। तो उनको वो समझाया कि उसके अगर आप गीला कचरा आपका डाल के देते हो और वो बांध के दे रहे हो, इट इज बिकमिंग मोर टॉक्सिक,
और वो जाके फिर वो आपके गार्बेज वैन्स देखेंगे इसमें प्लास्टिक है तो वो सीधा लैंडफिल्स में जाएगा। अगर आप उसी को अलग से दो, डस्टबिन में सिर्फ गीला कचरे के डब्बे में सिर्फ गीला कचरा दो, वो डब्बा वहां पे वो लोग खाली करेंगे इन द वेट वेस्ट वैन के पार्ट में, एंड आपका डब्बा आपको घर पे सिर्फ धोना है। थोड़ा साबुन यूज करो तो उससे पानी से भी अच्छे से धुल जाता है। सो इट्स अ हैबिट, हमको इतने सालों की हैबिट उल्टी लगी है, तो वो निकालने को टाइम लगेगा, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट स्लोली स्लोली स्लोली। तो वो मैंने जब करके दिखाया, देन पीपल आर लाइक अच्छा ये कर रही है एंड शी इज टेलिंग अस व्हाई द इसके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देन दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड ट्राई इट। अभी वही वो बोलते हैं कोई कोई मेरी नेबर्स आंटीज लोग, तू बोलती है उसके लिए कर रहे हैं बट नीलिमा बाई लोगों से करना मिला। आंटी बाई क्यों करेगी, आप क्यों नहीं, कचरा किसका, आपका है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नहीं आ रही है कि कितने भी मतलब अफ्लुएंट फैमिलीज हो या एकदम मिडिल क्लास भी हो, तो वो थोड़ा सोच बदलना इज अ ह्यूज चेंज है। सो दैट वे, सो आई स्टार्टेड विथ माई बच्चों के से, थैंकफुली सिंस अ मॉम, तो मेरा हमेशा ये कि ये एक डायपर मैंने जो डाला है वो लैंडफिल में उनके 2-3 जनरेशन्स तक रहने वाला है। सो हाउ एम आई हेल्पिंग देम, इनको जायदाद वीदाद दे के कोई पॉइंट नहीं है। अभी हम लोग उनको मास्क के साथ भेजते हैं बाहर कि कहीं से इन्फेक्शन आ जाएगा, एयर पोल्यूट हो गया है। बाहर का पानी नहीं पीने देते, घर का भेजो है तो बिस्लेरी का पियो क्योंकि पानी ये करके रखा है। सॉइल, खाना बाहर का ऑर्गेनिक ही लाना है बिकॉज खाना भी बराबर। तो बच्चा क्या, उन्होंने दिया क्या उनको, तो दैट वाज माई ऑलवेज गिल्ट कि वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर देम, पर ये हम दे रहे उनको अलग की, और उल्टा ट्रॉमा भी दे रहे उसके साथ कि हम लोग ने बिगाड़ के तुमको दे दिया, अब तुम निपटो। सो वो मुझे बहुत खटकता है कि वाई शुड दे बेयर द ब्रंट ऑफ व्हाट वी एंजॉयड। हम लोग ने लाइफ जीने के चक्कर में, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में, शान शौकी करने के चक्कर में वी हैव गिवन देम द बैड साइड ऑफ द लाइफ। तो मेरा था कि जितना मैं कर सकूं उतना मैं करूं। सो आई स्टार्टेड स्लोली स्लोली, लाइक when my son was heard about menstrual cups, I started using them. फिर बेटी के टाइम आई गॉट टू नो अबाउट क्लॉथ डाइपर्स, आई स्टार्टेड यूजिंग देम। फिर स्लोली स्लोली घर में बहुत सारे मई आई थिंक 2018 में कंपोस्टिंग का ट्राई किया। कलिंगड बहुत कटे थे, वाटरमेलन्स, तो उनको फेंकने को मन नहीं कर रहा था, अरे पूरा का पूरा जा रहा है तो कंपोस्टिंग ट्राई तो कर दे, एक टूटी बकेट में स्ट्राइक किया। सो दैट्स हाउ स्लोली स्लोली ट्राई किया। वेस्ट इतना जा रहा है तो उसको प्लास्टिक को थोड़ा साइड में निकाल के देखते हैं, एटलीस्ट दूध के बैग से स्टार्ट करते हैं। स्लोली 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 एक एक चीज करते गए। देन देयर लॉट ऑफ टाइम फेल भी हुआ है कि मतलब बोलते ना कुछ नहीं कर सकते, समटाइम्स यू हैव टू थ्रो द एंटायर थिंग। वो भी हुआ है, मतलब प्लास्टिक का पूरा क्योंकि उसमें दूसरा कुछ मिक्स हो गया, इतना साफ करके रखा था, हैड टू थ्रो इट। कंपोस्टिंग का भी हुआ है, कीड़े निकले, ये निकले, लर्न इट थ्रू हार्ड वे एंड succeeded also. So अभी भी even after 4 years I can say not every day is same. उसमें भी होता है, even composting में like everyone keeps saying तू तो अभी expert हो गई। I said yeah, but every day I'm learning something new in composting also, even if I'm doing it that way. So that's how I started slowly. I think abhi bhi I'm still learning. There is so much to learn, and I'm glad कि maybe law of attraction बोलो या कुछ कि I get those kind of people like you call met up कि चलो करते हैं. So those kind of people are only coming to me, and I realized कि the awareness is very much needed. So पहले आई यूज टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया, बुक ब्लॉगिंग किया, ब्लॉगर थी इतने साल, इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ वो भी कर लिया, एंड देन आई वाज लाइक सब लोग मुझे चिढ़ाते तो पूरा लाइफ क्यों दिखा रही है, अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ दिखा रही है। देन आई रियलाइज एक दो इंस्टेंसेस ऐसे मैसेजेस आए कि नीलिमा तू बोल रही है ना करके हम लोग के दिमाग में इतना फिट हो गया है कि हमेशा हमको सॉस का सैशे दिखता है तो नीलिमा याद आती है कि ये नहीं यूज करना है, ये रिसाइकल नहीं होता है, सो वी शुडंट बी यूज इट। शादियों में जाते 200 ml की बॉटल दिखती तो नीलिमा होती तो बहुत गुस्सा करती थी। तो ये आदत है, तो दे आर लाइक यू मेड एन इम्पैक्ट, वो मुझे थोड़ा सा बूस्ट करता है कि आई हैव टू start talking about this. So that's why I said चलो I have the ability, I have an Instagram account, I can talk, I can convince people diplomatically. तो मेरे सोसाइटी में सब लोग मुझे भी बोलते तू डिप्लोमेटिकली बुलडोज करके करके हमसे करवाती है, बट दे आर ऑल्सो थैंकफुल कि ये सब चीजें हमको कभी ध्यान में ही नहीं आई थी। पेपर कप में क्यों चाय नहीं पीनी है, उसमें लाइनिंग है, उससे बुरा मतलब कैंसर हो सकता है, ये सब। तो उसके लिए सिंपल क्या है, अपने अपने कप्स लेके आओ, या तो स्टील के कप्स सबके पास रखो सिक्योरिटी को देने के लिए या वॉट एवर, उनको भी आप हेल्प करो ना जितना हो सके। तो ये छोटी छोटी चीजों से इवन आई लर्न द हार्ड वे। अभी भी कभी कभी गलती होती है तो ऐसे कि अरे यार इसको सोल्यूशन क्या है, नहीं मिल रहा है, तो लाइक येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे माय डॉटर वाज लाइक तू बोल रही है केमिकल नहीं और तू वो केमिकल वाला क्यों यूज की,
So I said, because I don't know the solution अभी तक. I haven't found a natural alternative to this. I'm still looking for it. जब मिलेगा we'll switch. पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते. एंड मैं कर लूंगी, बट नॉट नेसेसरी माई किड्स विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट, माई इन लॉज विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट. उनके लिए थोड़ा लर्निंग अनलर्न करके लर्न करना इज थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो आई एम लाइक ओके विद इट. बोले ना, देर है अंधेर नहीं है, कुछ तो हो रहा है. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. सो आई एम जस्ट ग्लैड कि आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल एवरी डे, कॉल अप या मैसेज करते हैं या कुछ की, नीलिमा ये करना है, कैसे करना, डर लग रहा है या ये करना है. सो आई एम लाइक चलो कोई तो सोच तो रहा है एटलीस्ट नाउअडेज. दैट इज द मेन थिंग. वो बिगनिंग चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ नहीं रही है, एंड सेकेंडली उनको पता नहीं है. सो लाइक इन माई कंपोस्टिंग जर्नी ऑल्सो आई यूज टू बी दैट 4 years बैक, आई यूज टू बी दैट एक्टिविस्ट. कोई नहीं करता, कोई नहीं. सोसाइटी में चिल्लाती रहती थी कि नो वन इज डूइंग, नो वन इज. तो एक आंटी ने स्वीटली आके पूछा, नीलिमा करना क्या है, हम लोगों ने जब भी किया है ना उसमें से पानी निकला है, कीड़े निकले हैं, तो हम लोगों ने वो पूरा फेंक दिया है, तो हमको पता ही नहीं कैसे करना है, तू सिखाएगी क्या. आई सेड, देन इट वाज लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर मी कि अच्छा इनको बेचारों को पता ही नहीं है. सो आई हैव बीन थ्रू दैट, बट थैंकफुली आई हैड रिसोर्सेज थ्रू विच आई लर्नड, एंड आई डिडंट गिव अप. ये लोग ने करके छोड़ दिया है. सो थोड़ा पोलाइटली यू हैव टू हैंड होल्ड एंड टीच, एंड पीपल आर रेडी टू लर्न. आई एम सीइंग दैट चेंज ऑल अराउंड नाउअडेज. हर एक क्लास में, इवन छोटे बच्चे बोलो, एकदम स्लम्स के किड्स भी देखो, दे आर इंक्विजिटिव. उनको करना है कि हाँ प्लास्टिक बुरा है, पर क्यों बुरा है, क्या क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है. सो दे आर रेडी टू लर्न, एंड आई वुड लव टू टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी. तो उसके लिए नाउअडेज आई एम लाइक अवेयरनेस सेशंस करो, जितना सोशल मीडिया थ्रू कर सकते हो, वर्कशॉप्स कर सको तो करो. आपको मैं यूजुअली आई इनवाइट पीपल होम कि आ जाओ, अगर आप मेरे एरिया में रह रहे हो, कम होम. मेरा मोस्टली गार्डन बहुत फेमस है इंस्टाग्राम की वजह से. सो गार्डन देखने के लिए आ जाओ, और फिर आपको कंपोस्टिंग देखना है तो सीधा लाइव देख लो. बायोएंजाइम्स बना रही हूँ तो कैसे बना रही हूँ वो देख लो. सिंपल आपकी क्वेरीज है तो वो देख लो. आपको एफर्ट है थोड़ा आने का, बट प्लीज कम होम. तो दे आर लाइक हाँ ये अच्छा लगता है कि दे कम होम, 1 घंटा स्पेंड करते होते, अच्छा भी लगा. दे तेरी एनर्जी देख के वी फील लाइक डूइंग थोड़ा सा वन, थोड़ा तो बिट कर ले. तो आई एम लाइक ग्लैड कि चलो काम हो गया दैट वे. वंडरफुल नीलिमा, आपकी जर्नी सुन के एंड सर्टनली मतलब आपने जो लास्ट में कहा आपकी एनर्जी लेवल्स आपकी बातों में मुझे खुद यहाँ पर फील हो रहे हैं. 2-3 चीजों पर लौट कर जाना चाहूंगी. मैं खुद अपने हर इंटरव्यू में, हर जब भी मैं भी बोल रही होती हूँ, ब्लैक पॉलिथीन के बारे में जरूर बोलती हूँ कि लोग अपनी उस कचरे को ब्लैक पॉलिथीन में डाल के गांठ लगा के जब बाहर डालते हैं ना, उनको लगता है सफर खत्म हो गया, लेकिन उस कचरे का सफर वहीं से शुरू होता है. वो वहीं से जब लैंडफिल तक एंड करता है, वहीं पे उसका सफर की शुरुआत हुई है, और वो आपके घर से ही हुई है. सो सेग्रीगेशन, यू सेड इट वेरी वाइजली, बिकॉज सेग्रीगेशन अगर घर पर ही हो जाए, वेट वेस्ट को अलग करना, ड्राई वेस्ट को अलग करना, हम काफी चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं. दूसरी चीज आपने जैसे कही, वन थिंग एट अ टाइम, बिल्कुल सही कहा. बिकॉज कई बार क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली को ना एक बहुत ही बड़ा शब्द समझा जाता है, जो कि इतना बड़ा नहीं है. बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीजें करनी है, उनको करने के लिए भी लोग हिचकते हैं. लाइक जैसे आप कह रहे हैं ना, मेरे साथ भी होता है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे कहेंगे ओ तू इको फ्रेंडली है, हमें भी बता. अब बताने लायक ऐसा कुछ अलग हम नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग एंड बाइंग स्टफ, वी आर नॉट गोइंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. आप भी कर सकते हो, घर में टिश्यू पेपर का यूसेज कम करना है, प्लास्टिक कम लाना, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो सिर्फ हम ईज एंड कन्वीनियंस की वजह से करना नहीं चाह रहे. तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक चीज एट अ टाइम, एक ही चीज करके देखिए, खुशी मिलेगी. कोशिश करके देखिए, बिल्कुल होगा. एंड जैसे आपने कहा ना प्रैक्टिकल, नीलिमा मुझे वो चीज आपकी बहुत अच्छी लगी. कई बार क्या होता है कि वर्बल चीजें ना उतना आपको हेल्प नहीं करती हैं. जैसे कि आपने कहा कि आप घर पे बुला के प्रैक्टिकल दिखाती है ना, आई थिंक दैट हेल्प्स यू मोर. बिकॉज प्रैक्टिकली जब लोग समझते हैं ना, अच्छा कंपोस्ट ऐसे बनता है, अच्छा बायो एंजाइम ऐसे बनता है, तब उन्हें दिखता है कि ये इजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है. एंड सर्टनली आपका ये जो सू निलिमा सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, तो यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. बिकॉज प्रॉब्लम्स चारों तरफ है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन यस, फाइंडिंग सॉल्यूशन, फाइंडिंग अ वे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं, दैट इज वेयर आई थिंक जो ये सॉल्यूशन की आपने बात कही वो यहाँ पर आती है. नीलिमा मैं एक एक करके चलना चाहूंगी. जैसे कि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आपने जो सॉल्यूशन में कंपोस्टिंग है, बायो एंजाइम है, बर्तन बैंक है, और मैं एक दो सवाल और करना चाहूंगी. हम शुरू करते हैं आपकी कंपोस्टिंग की जर्नी से, राइट? तो कंपोस्टिंग में आई थिंक यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद डेली डंप ऑल्सो, राइट? एंड आप खुद घर पे भी करती हैं. तो ये बताइए कंपोस्टिंग की ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Okay, so 2018, like I said,
बहुत ज्यादा मई के टाइम बहुत वाटरमेलन कलिंगड खा रहे थे, तो वो फेंकने में हिचकिचाहट हो रही थी कि इतना सारा पूरा हम लोग फेंक रहे हैं। और इतने सारे मैं वीडियोस सुन रही थी, मेरे फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे जो ये दिन रात करते रहते, तो मैं वही उनको बोलती कि अच्छी आदत मेरे को लत लगा दी है तुम लोगों ने, ये सब सुन सुन के एंड तुम लोग का देख देख के। सो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। सो एक टूटी बकेट थी घर में, तो उससे ट्राई किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत वार्न किया कि मेरी सासू माँ ट्राई कर चुकी थी, बिकॉज वी हैव अ गार्डन एंड शी इज अ वेरी ग्रीन थंब पर्सन, और वो सब तो बोलते मम्मी कर चुकी है, इसमें बहुत कीड़े निकले और हम लोग सब गाली देते हैं, तो मत करना। तो भी मैंने नहीं, करके तो देखूंगी। तो मैंने ट्राई किया और उसमें पत्ते डाले, मिट्टी डाली एंड ऑल दैट। तो वो बहुत कीचड़ होता था, पूरा पानी निकलता था, कीड़े निकलते थे एंड मोर ऑफ वो हार्ड हो जाता था, कभी कभी नीचे हिलाने को ही नहीं हो रहा था। सो आई यूज टू फ्रीक आउट। और तभी कोइंसिडेंटली माई इन लॉज वर आउट ऑफ स्टेशन, और मुझे डर था कि एक भी पेड़ गया तो मैं गई। बाकी का कुछ मुझे डर नहीं है इन लॉज के लिए, बट वो गार्डन को कुछ होना नहीं चाहिए। और वो कीड़े निकलते तो मैं आई यूज टू फ्रीक आउट कि यार मेरे प्लांट्स गए। तो मेरी जो फ्रेंड जिनको मैं कंसल्ट करती हूँ बोलते कुछ नहीं होगा, उसका काम सड़ना है, उसको सड़ने दे। और फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया कि शायद तेरी सॉइल जो है वो मत डाल कंपोस्टिंग में, शायद तेरी थोड़ी क्लेई है तो वो जैम कर रही है पूरा उसको। तो सिर्फ पत्ते डालो, सिर्फ पत्ते डाले, फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके एक दो लॉट अच्छे बने। फिर थोड़ा थोड़ा, फिर मैंने बोलते ना, मेरा हर जगह पे ध्यान वही रहता था, घर में कोई डस्टबिन खाली पड़ा है चलो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें होल्स करो डालो। बाहर भी जा रहे हैं तो हार्डवेयर स्टोर में देखा हो तो वो फेविकॉल के बड़े जो ड्रम्स रहते थे वो एक मिल जाए, तो फ्री में तो कभी मिलते नहीं है, तो उनको कंटिन्यूअसली जा जाके पूछ के अंकल खाली हुआ क्या, मिलेगा क्या भैया, ये मिलेगा क्या डब्बा। कबाड़ी के वाले के पास गए, फिर सोचा खर्चा तो करना पड़ेगा, ये जुगाड़ से नहीं होने वाला। सो आई बॉट वन फेविकॉल का ड्रम, उसमें ड्रिल किए होल्स और उसमें स्टार्ट किया। और वो इतना बड़ा रहता था कि वो ये करने में मुश्किल होती थी, तो फिर पेड़ों की डंडियां लेके वो पूरा करना। एंड देन ऐसे 3 years आई वॉज डूइंग दिस। एंड एट अ पॉइंट ऐसे होने लगा था, सिंस आई वॉज यूजिंग ड्राई लीव्स, दे यूज्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंपोस्ट, 6-7 months कभी कभी वो पूरा लॉट हो रहा है। और मैं डब्बे फुल हो जाते थे, तो एट अ पॉइंट आई हैड 9 डब्बास, पेंट के डब्बे, ये ड्रम्स, बकेट्स एंड ऑल दैट। और थैंकफुली आई हैव द स्पेस, तो आई कुड कीप देम इन वन कॉर्नर बचा के बारिश से। एंड आई यूज्ड टू कीप डूइंग। और मेरा हमेशा का रोना कि मेरे डब्बे खत्म। मेरे घर वाले बोलते हैं कितने तू लाएगी, ये ला रही और कर रही और छोड़ भी नहीं रही, एक भी बाहर फेंकने भी नहीं देती है तू कचरा। ऐसे नहीं, ये तो नहीं। और वो चक्कर में मैंने आई स्टार्टेड सेग्रीगेशन, तो प्लास्टिक भी आई वाज सेंडिंग फॉर रिसाइकलिंग। तो मेरे डस्टबिन यूज टू बी एम्प्टी, हाउसकीपिंग का स्टाफ आके देखता था डस्टबिन खाली तो वो स्किप कर देते थे मेरे घर में आने के लिए कि कचरा इनके पास होता ही नहीं। सो दे वर डूइंग दैट। सो थैंकफुली आई वाज एबल टू अचीव मोस्ट ऑफ द डेज जीरो एम्प्टी डस्टबिन का पूरा घर में। एंड ये करते करते आई वाज सीइंग द प्रॉब्लम कि ये जल्दी नहीं हो रहा है डिकम्पोज, उसको टाइम लग रहा है। दो इट इज नेचुरल पूरा। आई दूसरा कुछ एक्सिलरेटर्स भी नहीं डालती थी। फिर आई केम टू नो अबाउट एक्सिलरेटर्स, देयर आर डिफरेंट पाउडर्स विच यू कैन ऐड जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ा के इट हेल्प्स टू स्पीडन अप द प्रोसेस। बटर मिल्क तो करता ही है आपका, इडली डोसा का आटा चल जाएगा, बट दिस विल बी बेटर। सो आई ट्राइड दोज ऑल्सो। फिर आई गॉट टू नो अबाउट डेली डम, तो उनका मैं देखती रहती थी वीडियो, सबके घर में वो पॉट्स खंबे जो बोलते हैं, मतलब ये बहुत अच्छा है। तो कोइंसिडेंटली आई कनेक्टेड विद देम एंड तभी मैं लाइक आई सेड मेरे वो सोसाइटी में आई यूज्ड टू कीप टेलिंग एवरीवन कंपोस्टिंग करना चाहिए। तो सब लोग बोलते थे तेरी तरह टाइम नहीं है और इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो डब्बों को होल करे और फिर उसको घुमाए। हमारे माली लोग सुनते ना हमको टाइम है। तो आई वाज लाइक इसको कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। तो दे वर सेइंग आप तू हमारे लिए सोसाइटी के लिए एक वर्कशॉप कर ले, हम लोग लेडीज आ जाएंगी, तू बता देना। सो आई कनेक्टेड विद डेली डम, तो उन्होंने यहाँ के जो पार्टनर है उनको भेजा। सो ही केम एंड ही शोड अस इन दैट मटका टेरिकोटा खंबा जो बोलते हैं उसमें दिखाया। तो लॉट ऑफ अस ऑल ऑफ अस लाइक्ड इट। सो हम लोग ने 8 लोगों ने, लेडीज ने वो खंबे खरीद लिए। एंड देन आई यूज्ड टू बी द कोऑर्डिनेटर इन बिटवीन ऑल ऑफ देम कि अरे उसका पाउडर जो रहता है, रिमिक्स पाउडर जो है वो खत्म हो गया, या मुझे एक चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। सो वो पूरा सर्कल वो पर्सन से कोऑर्डिनेट करो, फिर डेली डम को बताओ ये वो। दे आंटीज वो लाइक तू एक काम कर, तू ही बन जा, तू हमारे सब ऑर्डर ले लो, तू ही ले, हम लोग को नहीं करना ये सब। ऐसे ठीक है। तो आई कनेक्टेड विद डेली डम का टीम, दे सेड या वी आर मोर देन वेलकम, वी लव हैविंग मोर पीपल, वी वांट इन ईच सिटी जितना हो सके वैसे। तो यू कनेक्ट, यू आर सो पैशनेट अबाउट इट, वी कैन दिस। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग। कभी भी फोन कस्टमर केयर एंड एवरीथिंग इज वेरी हेल्पफुल। So I said, चलो, I have the space, I have the time right now.
तो आई कैन डू इट. सो आई स्टार्टेड विद दैट स्लोली. आई फर्स्ट तो मेरे सोसाइटी मेंबर्स को ही बोला कि आई एम बिकमिंग वन, विल यू ऑल सपोर्ट. दे आर लाइक हाँ हाँ तू ले, हम लोग तेरे को पूरा ये हेल्प करेंगे. ऐसे ठीक है चलो. सो फैमिली ऑल्सो सेड कर, तू तुझे कुछ तो करना है विच यू पैशनेट अबाउट. इतने सालों से तू स्ट्रगल कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, सो डू इट, लेट्स ट्राई इट आउट. सो थैंकफुली I became one partner, and now I keep the stocks at home and I connect with people and help them out. So जैसे तो there are like lot of daily dump के हर city में partners हैं, so you can connect with them and they will guide you how to get your composters, because these composters terracotta ones सिर्फ बैंगलोर में है. सो उनको यहाँ पे हर एक सिटी में लाना इज अ टास्क, तो उनको ट्रांसपोर्ट करके एंड ऑल दैट. सो दैट्स व्हाई वेयर दीज पार्टनर्स लाइक अस कम इन, हु कैन गाइड. एंड समटाइम्स लाइक नॉट ऑलवेज कंपोस्टिंग इजीली हो जाता है, कभी वो लाइक ऐसे वो पानी निकलता है, कीड़े निकलते हैं ना, तो हाउ टू ट्रबल शूट दैट. स्लोली स्लोली टीथिंग इश्यूज रहते हैं, स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता कैसे करना है, या बाद में भी कभी इश्यूज होते हैं, कभी कुछ खत्म हो गया लाइक द पाउडर्स गेट ओवर, या उसका लिड टूट गया या कुछ हुआ. सो हाउ डू वी टैकल विद मॉनसून में अलग इश्यूज रहते हैं. So composting is a huge thing. I tell people it's a lab. आपको पूरी चलती फिरती लैब दे दी है, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट चलता रहता है. एवरी डे यूल सी समथिंग न्यू, एंड हर सीजन के हिसाब से वो भी चेंज होता रहता है. सो बारिश में कंपोस्टिंग अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, ठंडी में अलग होता है. तो हर एक के लिए यू हैव टू कीप डूइंग इट, एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑब्जर्व इट. दैट्स व्हाई द बेसिक आई लव द थिंग कि पहले हम लोग को फास्ट फूड की आदत हो गई है, फटाफट फटाफट होना चाहिए. इसमें यू लर्न लॉट ऑफ पेशेंस और खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी हो, सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. तो मैं पहले जब वो 9 डब्बों के साथ बैठी थी, तो मेरा रोज का काम क्या रहता था, 1 घंटा डंडा लेके उसको हर एक डब्बे को घुमाओ, ये कोशिश में कि एक तो खाली हो जाए, एक तो थोड़ा सा नीचे जाए, तो मैं इसको इसमें शिफ्ट करूं ताकि एक डब्बा मुझे मिले, 2-3 दिन के लिए वो सफाइस हो. तो ये तो सब लोग मुझे बोलते तू विच की तरह वो बैठी है कॉलेंड्रम घुमाते घुमाते. साइजली मेरे लिए वो मेडिटेशन है. तो मेरे घर वाले अभी ये गई, अभी 1 घंटा आने नहीं वाली वापस, अभी वो उसके डब्बों के साथ बैठेगी. सो नाउ दैट हैज मतलब काफी मेरा टाइम ये हुआ है reduced, because the terracotta खम्बास the daily dump का they have made it only such a beautiful way कि वो बहुत फास्ट कर देते हैं, एंड लिटरली 1 मिनट में आपको सिर्फ डालना है एंड इट डज इट्स ओन जॉब. तो मैं सबको वही चिढ़ाती रहती हूँ, आई हैव डन इट फ्रॉम स्क्रैच. आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन सॉर्ट ऑफ मिल गई है, वो अपने आप काम करे बिना स्मेल, बिना कोई कीड़े बाहर आए, पानी है बाहर है, एंड इट डज इट इफ यू फॉलो द थिंग प्रॉपरली एंड यू आर ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. यू कैन डू इट विदाउट एनी हिकअप्स और ग्लिच और एनीथिंग. बहुत अच्छे से कर लेता है वो, एंड गारंटीड 60-70 डेज में आपको 2-3 किलो का खाद रेडी आपके खुद के किचन में से रेडी होता है. सो दिस इज लाइक एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, बट आपको ये साइकिल चलता ही रहता है. सो नाउ आई हैव लाइक आई स्टार्टेड इन लास्ट अप्रैल, सो 1 साल I have given to 30 families. अभी तक I have given the composters. So and each of them I keep calling them, messaging them कि कुछ हेल्प चाहिए, कुछ है तो दिल में करना क्या है, इसमें सिर्फ डालना है और वो अपने आप कर रहा है. कभी कुछ होता है तो वी कॉल यू, पर वो कुछ है नहीं वैसे, वो वंस इन अ ब्लू मून कुछ होता है. सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सो आई एम लाइक ओके चलो ठीक है. तो देन दे कनेक्ट विद वर्ड ऑफ माउथ, और किसी को फ्रेंड्स को बोलते हैं, फैमिलीज को बोलते हैं. तो दैट्स हाउ आई कीप कनेक्टेड. नाउअडेज आई एम स्टार्टिंग विद दीज वर्कशॉप्स कि किसी को है करना है, तो अगर आपको नहीं खर्चा करना है तो वी कैन आई कैन टीच यू विद DIY कंपोस्टर्स ऑल्सो, जैसे मैंने स्टार्ट किया. एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्शन. आई स्टार्टेड डूइंग स्टॉल्स, थोड़ा सा गट्स करके पुट अप स्टॉल्स ऑल्सो जहाँ जहाँ कहीं होते एग्जीबिशंस. बट आई ट्राई टू गो फॉर इको फ्रेंडली या प्लांट्स रिलेटेड वर्कशॉप्स या सेशंस रहेंगे या एग्जीबिशंस रहेंगे, बिकॉज दोज लाइक माइंडेड पीपल ओनली विल बी इंक्विजिटिव. क्योंकि बीच में भी वैसे हुआ था कि एक सोसाइटी का ये था एनुअल फंक्शन, उसमें उन्होंने बोला आप आओ हमारे यहाँ स्टॉल रखो. मैं बोले भाई आप लोग वहां पे नाच गाना कर रहे हो और मैं इधर कचरे के बारे में बात कर रही हूँ. नॉट ऑल पीपल विल लव दैट. और वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ भी, पीपल आके देख के हाँ ठीक है चलेगा, मटका है करके पूछने को आती मटका में क्या है, बट देन दे आर नॉट सो दिस. वो नॉट एवरी ओकेजन इज गुड टू टॉक अबाउट दिस. सो समटाइम्स आई हैव टू लाइक टेक बैक कि नहीं, हर चीज में नहीं, यू कैन बुलडोज पीपल. स्लोली यू हैव टू बाउंड्री कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं. that way and it is doing good. And coincidentally उसकी वजह से I am getting connected with my own municipalities यहाँ पे. So they are involving us NGOs like persons like me who are doing this on a regular basis कि आप आके help करो, आप awareness help करने में. So that also I've realized कि एक दो हम लोग या groups करके फायदा नहीं. The policy makers also have to come into the picture कि वो हम लोग कहीं तो reinforce करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको बोलने जाओ तो बोलेंगे आप कौन,
आप कौन बोलने वाले, हम आपका क्यों सुने? तो देयर समवेयर योर गवर्नमेंट, योर म्युनिसिपैलिटीज, योर पॉलिसी मेकर, द रूल मेकर्स हैव टू कम इनटू द पिक्चर। तो वो साथ में अगर बोलते हैं ना अच्छे से कर सके हम लोग एक साथ कोलैबोरेशन में, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। स्लोली स्लोली वी आर गेटिंग देयर, होपफुली जल्दी हो जाए तो इट विल बी अ गुड थिंग। हैट्स ऑफ नीलिमा, तुम्हारी एनर्जी तो मतलब सिर्फ तुम्हारी बातों में ही नहीं है, एंड द वे यू आर टेलिंग, मतलब ना तुमने इतनी मेहनत की है इस कंपोस्टिंग की जर्नी में। आई मस्ट से द वे यू आर टेलिंग कि जब आपने पहले बर्तन अपने घर के रखे, फिर आप वो फेविकॉल का कैन लेकर आई, उसके बाद द वे यू आर टेलिंग मी कि जिस तरह से आप कह रही थी कि मैं हिलाती थी, मैं आपको विच नहीं, मैं आपको वंडर वुमन कहूंगी कंपोस्टिंग के लिए, बिकॉज द वे यू हैव पुट इन योर एनर्जी, एफर्ट्स एंड टाइम टू कन्विंस पीपल, आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरह से आप कह रही ना कि आपने 30 फैमिलीज को उनको लेके दिया, नाउ यू आर ऑलवेज आस्किंग ऑल्सो देम, मतलब आपका पैशन इसमें शो करता है। एंड गाइज, ऑल द लिसनर्स who are in and around Thane, Nilima is available. Our Instagram handle I have already told you, Su Nilima Sustainable Solutions. आप उनसे कंपोस्टिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप कंपोस्टिंग का ये जो खंबा जिनकी उन्होंने बात की थी, इट इज ऑलरेडी अ सेटअप जिसमें आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई आपकी प्लास्टिक की टूटी बाल्टी जिस तरह से हम करते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी बिल्ट इन दैट वे कि आप इजीली कंपोस्टिंग को कर सके। कोई आपकी क्वेरीज है, निलिमा इज ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई एम श्योर आपको उसके एनर्जी लेवल्स दिख चुके होंगे, एंड द पैशन शी होल्ड्स फॉर दिस कंपोस्टिंग इज सर्टेनली सीन द वे शी इज सेइंग। और आपने तो 2-3 बार जिक्र किया ना कि आंटीज ये कहती थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है। आई नो अवेयरनेस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लोग नहीं जानना चाहते। लेकिन जहां तक पता है नीलिमा, मुझे क्या लगता है, कंपोस्टिंग कोई नई चीज नहीं। लाइक मैंने बचपन में ही अपनी मम्मी को देखा है, वो चाय की पत्ती ना हमारे घर में किचन में एक छोटा डस्टबिन अलग होता था, तब मुझे समझ नहीं आता था। मैं हमेशा मैंने कहा आप ये अलग से डस्टबिन काय को रखते हो छोटी चीजों का। तो शी हैड दिस पॉलिसी, ऑल्दो उस समय ना वो एक पॉलिथिन बैग लगा के रखती थी उस डस्टबिन के ऊपर, एंड उसमें वो सिर्फ वेट वेस्ट रखती थी। पोटैटो पील्स मैंने जाते थे, तब मैं छोटी थी, पर मुझे इतना जरूर समझ आता था कि वेट वेस्ट ना किचन के ऊपर एक छोटा सा जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके कोने में रहता था, ड्राई वेस्ट नीचे हो रहा था। एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू कि हमारे घर में बहुत सारे पेड़ थे उन दिनों, मुझे ये चीज समझ नहीं आता था व्हाट इज हैपनिंग। चाय पत्ती वगैरह ना उन्होंने गड्ढा कर रखा था गमले के अंदर, शी यूज्ड टू पुट इन देयर। तो मुझे लगता है तब शायद कंपोस्टिंग एज अ वर्ड उसके साथ एसोसिएटेड नहीं था, बट शी वाज डूइंग द सेम थिंग। हम चाहे अपने फार्म्स की बात करें, हम चाहे अपने गाँव में चले जाए, कंपोस्टिंग कोई एक नया ट्रेंडिंग वर्ड नहीं है। उसे ट्रेंडिंग हालांकि भले बना दिया गया, बट ये कोई नई चीज नहीं है। इट इज लाइक हम नेचर से जो ले रहे हैं उसे उसी तरह से वापस करना है, और उसका सिंपल से तरीके को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो करेक्ट। कंपोस्टिंग मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज जो हम खुद ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसे वापस देना, एंड इसमें किचन वेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक तो कंपोस्टिंग की तरह ही एक और जो पॉपुलर वर्ड है इन रिसेंट ईयर, इट इज बायो एंजाइम, विच इज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, एंड दैट इज अगेन अ ऑर्गेनिक क्लीनिंग सॉल्यूशन which is produced by fermentation of either the citrus fruits and different fruits, jaggery and water. So नीलिमा मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बिकॉज लोगों को ना उसको लेकर बहुत क्वेरीज रहती हैं। जैसे आपने कंपोस्टिंग में भी कहा ना, चीज खराब हो जाती है, स्मेल आने लगती है। आप जैसे आप मुझे कह रहे थे कि यू यू प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ऑफ कोर्स आपने कंपोस्टिंग का अपना जिस तरह से बताया, मुझे बायो एंजाइम का भी प्लीज थोड़ा सा बताइए कि मतलब हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड what all things you look forward to when you are making a bioenzyme, and other queries related to it. Okay. So bioenzyme भी अगेन कोइंसिडेंटली वाटरमेलन ही, अगेन वाटरमेलन घर में था। Is it your एंड favorite यही fruit अगेन, somehow? सॉरी, Is it your favorite fruit, should I say? आई डोंट नो, कोइंसिडेंटली वो था, बहुत सारा होता है ना, तो उसके लिए Okay. वो क्लिक होता है कि फेंकना कैसे है। तो Right. अभी भी मेरा वही टग ऑफ वॉर रहता है, बायोएंजाइम बनाओ या कंपोस्टिंग में डालो, कुछ भी Okay. निकलता है तो that way. Great. So again, I was looking at these videos on Instagram and all that, friends who are doing it, and I used to be like, यार ये बहुत मेहनत का काम है, 3 महीना रुकना है and all that, जाने दो। एंड देन आई वाज लाइक एक बार चलो करके तो देखते हैं क्या है करके। सो आई ट्राइड इट विथ वाटरमेलन का पील्स, बट आई कट इट, और एक छोटा 2 लीटर का कोको कोला का बॉटल था, उसमें डाल के बना के देखा। तो एंड आई वाज इवन आई हैड दोस इश्यूज कि अरे कैसे पता चलेगा कि रेडी हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं,
और इतना ही दिन कैसे पता चलेगा और क्या क्या डालना है एंड ऑल दैट। सो आई वेंट थ्रू दैट। तो वाटरमेलन का बनाया, फिर बीच में ग्रेप्स मिले, खट्टे हो गए, बच्चे नहीं खा रहे तो वो डाल के देखे। इसमें मैंगोज आए, मैंगोज के पील्स बनाए, उसके ट्राई किए। सिट्रस तो बहुत किया कि बचा बचा के सिट्रस फ्रीजर में डालती थी एंड देन आई यूज्ड टू मेक इट। एंड वो चक्कर में माई डॉटर वॉज गेटिंग इन्वॉल्व कि मम्मी ये करना है, कटिंग करना है, क्योंकि छोटी मुंह की बॉटल में वो डालना इज अ हेडेक। तो काटते बैठते थे हम लोग। तो शी यूज्ड टू कम इन कि मैं हेल्प करती हूँ आपको डालने के लिए, आप काटते रहो। सो दैट वे सो किड्स ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। तो शी लाइक टू, तो फिर वो हम लोग करते थे। तो आई ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल बॉटल्स टू ऑयल कैंस। जितने घर में 5 लीटर के ऑयल कैंस थे वो लिए, फिर उसमें डाल दी थी। तो वो करती रहती थी। आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। फिर देखा कि अरे ये हो रहा है। कोइंसिडेंटली थैंकफुली माय मेड डिड नॉट रेजिस्ट, तो फ्लोर क्लीनिंग के लिए से स्टार्ट किया कि चलो वहां पे ट्राई करते हैं। एंड 2-3 महीनों के बाद लाइक आई सेड आई हैव अ गार्डन। तो हमारे यहाँ शाम को 5 बजते ही हम लोग खिड़कियां सब दरवाजे बंद करने लगते थे तो मच्छर आएंगे करके। बट माई फादर इन लॉ पॉइंटेड आउट, नीलिमा ये जब से तू यूज कर रही है तब से मच्छर बंद हुए हैं घर में आने। एक आध कोई दिखता है। आई एम लाइक अ प्रॉपर बोलते ना मच्छर चैंपियन। मैं लिटरली बाथरूम में जाऊंगी तो मैं 10-12 मार के ही आऊंगी बाहर, दैट काइंड ऑफ इतने रहते थे। तो अभी वो कम। एंड देन आई वाज लाइक नोटिस, हाँ यार ये कम हुआ है। एंड थैंकफुली तभी मेरा कंपोस्टिंग का मुझे इतना टाइम नहीं, खंबा आ गया था। सो आई वॉज नॉट स्पेंडिंग सो मच टाइम। सो आई टाइम टू एक्सप्लोर दिस आइडिया। जैसे चलो ट्राई करते हैं। देन सिट्रस फ्रूट्स लाए। फिर पूरा टाइम मैं ढूंढती रहती, अभी सिट्रस घर में कितना खाएंगे हम लोग। फिर जूस वाले के यहाँ ट्राई किया। उसको पूछा आप दोगे कहते ही सेठ हाँ लेके जाओ, मैं तो फेंक रहा हूँ वैसे भी, तो लेके जाओ। तो 1-2 बार मैंने लाया तो इतना गोनी भर के आता कि 2 दिन में रात को 4 बजे तक काटती बैठती थी। सब घर के काम खत्म होने के बाद आई यूज्ड टू डू इट। फिर वो 5 लीटर के कैंस में फिर 1-2 फ्रेंड्स को दिया, नेबर्स को दिया कि एंड कोइंसिडेंटली वी हैव वन लेडी इन आवर सोसाइटी हु हैज बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। पर वो सब लोगों ने सीखा है, सुना है, बट किसी को स्ट्राइक नहीं हो कि वो यूज हो सकता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट दे वर लाइक अच्छा ये तो वही सेम चीज वो जो बोल रही थी। बट हम लोगों ने कभी क्लीनिंग के हिसाब से इतना यूज हो सकता है वो कभी सोचा नहीं। तो ऐसे नहीं, इसका बहुत यूज है, आप ट्राई करो। पहले सब लोग बायोएंजाइम बोलेंगे तो सबको प्लांट फर्टिलाइजर करके पहले याद आता है कि उसके लिए यूज होता है, बट दे डोंट नो अबाउट दिस क्लीनिंग पार्ट ऑफ इट कि हर चीज में रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो मोस्टली फ्लोर क्लीनिंग। फिर मैं जब खुद के पर्सनल टॉयलेट बाथरूम धोने के रहते थे आई यूज टू यूज दैट। आई यूज टू सी द इफेक्ट उसमें। व्हेन आई यूज अदर दीस क्लीनर्स आई हैव नोटिस्ड आई गेट इचिंग ऑन माई हैंड जब वो क्लीन करने लगते। तो आई सेड चलो ये ट्राई करते। तो वो यूज करती थी तो वो कम हुआ। प्लस आई हैव नोटिस यूटीआई इन्फेक्शन जो लेडीज को होती है वो कम होने लगे बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग बायोएंजाइम्स। तो आई सेड हाँ ये कुछ तो है, समथिंग इज देयर कि वो ये कर रहा है। एंड देन माई किड्स यूज टू बी ऑन द फ्लोर ऑल द टाइम, टीवी देखने के लिए, खेलने के लिए ऑन द फ्लोर। तो ये पूछ रही हूँ तो वो हर महीने जो मैं उठा उठा के उनको सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास लेके गई थी वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम होने लगा, टचवुड। तो आई वॉज लाइक हाँ ये कहीं तो इफेक्ट हो रहा है। देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट इन माई गार्डन। तो उसमें फ्लावरिंग बहुत आने लगी। तो माई मदर इन लॉ यूज्ड टू लाइक नीलिमा ये प्लांट को ना बहुत दिनों से फूल नहीं आ रहे अच्छे, तो वो तेरा वाला सोल्यूशन दे। सो आई वी यूज्ड टू ट्राई इट आउट। भर भर के फूल आते थे। वी नोटिस द चेंज इन कंपोस्ट तो डाल ही रहे थे तो उसके लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। बायोएंजाइम से बटरफ्लाईज एंड बीज थोड़े थोड़े आने लगे। तो वही हम लोग बोलते थे एक आध कभी तो बटरफ्लाई दिखता था, अभी झुंड में आते हैं इतने सारे। देन आई स्टार्टेड कीपिंग वो अलग साइड है कि आई यूज्ड टू टेक देयर एग्स ढूंढ ढूंढ के, अगेन वो उसको ढूंढते रहते थे। एंड देन वी यूज्ड टू बच्चों को दिखाने के लिए पूरा उसका स्टेज करके वो पूरा बटरफ्लाई को रिलीज करते थे। सो आई नोटिस दोस्त छोटे छोटे बर्ड्स आने लगे। सो आई कुड सी दैट एंटायर इकोसिस्टम बिल्ड अप कि ये नेचुरल जब हम लोग ने केमिकल से दूर हटे then they started coming into my own house. So every year we used to have that कि हम लोग एक ट्रक लोड भर मट्टी और खाद लाते थे गार्डन में डालने के लिए। वो 4 साल 5 साल से हम लोगों ने नहीं लाया। वी आर यूजिंग द जो कंपोस्ट बनता है वो ही एंड बायोएंजाइम्स। केमिकल वाला मैं आने नहीं देती हूँ जितना भी। पेस्टिसाइड भी स्प्रे भी करना है, कीड़ लगी पहले बायोएंजाइम करो, नीम स्प्रे करो, फिर बाद में सोचेंगे अगर नहीं गया। पर मोस्टली वो निकल जाता है। एंड आई हैव नोटिस वो इतने कीड़ भी नहीं लगती कंटिन्यूसली अगर आप प्रॉपरली यूज करो उसको। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। तो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग। तो वो छोटा छोटा आई यूज्ड टू मेक इट, गिव इट टू पीपल। फ्रेंड्स बोलने लगे यार तू इतना मेहनत कर रही है हमको उसका कुछ तो चार्ज ले। सर सेट आपको जितना देना है दो। तो आई वाज लाइक वो मनी लेने को भी गिल्ट हो रहा है क्योंकि इतना सिंपल सी चीज है उसको क्या करे। तो आई एम हेल्पिंग एनिमल ऑर्गेनाइजेशन। माई किड इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। सो उनको मैं 100-200 उनका कुछ भी एक्सपेंस आता है वो लोग फंड्स के लिए पुट अप करते हैं। तो यूज टू गिव देम। आई सेड यार ये 100-200 से इनका कभी सस्टेन नहीं होने वाला, आई नीड टू गिव देम कंसिस्टेंटली। सो ऐसा
गिव माई सेल्फ की मैं 2000 तो इनको 2-3 months देती रहूंगी. तो हाउ डू आई गेट द 2000? सो ऐसे चलो ये बायोएंजाइम का जितना सेल होगा आई विल गिव इट टू देम. So that's how I started selling it in small this to my friends and all that. And then people started coming कि यार ये बहुत अच्छा है because बायोएंजाइम का यूज क्या है? When you make it, छानने के बाद you have to use only 10 ml to 1 liter. 1:10 उसको आपको डाइल्यूट करना है. तो मैं 1 लीटर देती हूँ तो उसका 10 लीटर बनता है. तो काफी दिन तक तो फ्रेंड्स स्टार्टेड गिविंग फीडबैक कि अरे ये एक तो इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से कर रहा है, एंड सेकेंडली ये चलता बहुत दिन तक है. वही हमारे दूसरे सोल्यूशन हमको हर 2-3 महीने में या 15-20 दिन में नए नए बॉटल्स लाने पड़ रहे हैं. प्लस सेकेंडली ये तो रीयूज बॉटल्स में दे रही है. बहुत बार मैं उनके बॉटल्स में उनको रिफिल करके दे देती. तो दे वाले कि यार ये भी कम हो रहा है. तो दैट इज बेनिफिट. उनको ट्रांजिशन दिख रहा था कि इट इज सेविंग इन लॉट ऑफ वेज. तो ऐसे चलो इसको ट्राई करते. सो आई put up on a price point and I said chalo let's try this. And then that's how I started ki composting I started, then bioenzyme I started. I said now since I'm putting a charge, let's make it like a official. Then I put up Osu Nilima ka sustainable solution. I said abhi I was just because a lot of people were like क्या गारंटी ये चलेगा, आपका कौन, आप अथॉरिटी क्या हो, कहाँ से आ रहे हो, हाउ डू यू नो इट इज इफेक्टिव, ये आपका खुद का सोल्यूशन है क्या? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने भी कहीं से सीखा है. पीपल हैव बीन डूइंग दिस एंड इट इज वर्थिंग. एंड अगेन आई एम दैट पर्सन, मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगती है आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट. आई डोंट गो बिहाइंड उसने थियोरी और उसका क्या है एंड ऑल दैट. मुझे मेरे लिए इफेक्टिव है, आई टेल देम माई एक्सपीरियंस से इट इज वर्किंग, ट्राई दिस आउट. नहीं तो इट्स योर नो फोर्सिंग इन नथिंग, आपको करके मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ. So that way. So that's how I started with this. And coincidentally, like roughly that day, I was calculating since a year I've sold 200 liters. And I was able to give that organization 30,000, which is मेरे हिसाब से 1 year में I would have done it personal level पे कभी नहीं कर पाती थी. So even that organization is using it in their own ways कि animals के लिए वो sting जो आता है उनके potty और इससे यूरिन से वो काफी यूज करने के लिए. सो दे आर लाइक हमको ये लार्जर स्केल पे भी यूज करके देखना है कि हाउ कैन वी एक्चुअली यूज इट, बिकॉज दे देमसेल्फ सी कि ये बाकी के क्लीनर्स की वजह से एक्चुअली द एनिमल्स आर फॉलिंग सिक. क्योंकि वो लोग तो फ्लोर पे ही रहते हैं पूरा टाइम, खाना नीचे उनका रहता है फ्लोर पे, वो खाते रहते. तो दे इन बोलते हैं हम लोग तो भी स्किन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो लोग तो पूरा खाना पीना सब कुछ उनका उसमें से ही जा रहा है. सो हाउ टू रिड्यूस इट. सो आई एम होपिंग कि larger scale पे people start using it and then we see the change. Like everyone I tell कि इसका 1 ml अगर ड्रेन में जाता है तो it will 1 liter of polluted water को क्लियर करेगा. सो होपफुली अगर हर घर यूज करने लगे तो हम लोग का जो गंगा एंड यमुना का जो पोल्यूशन दिख रहा है दैट वी माइट बी एबल टू रिवाइव या चेंज इट इन सम वे इन द लॉन्ग रन. या तो अभी भी इफ वी कैन ट्राई इट आउट. सो माई हाउस आई कैन सी द चेंज. सो आई एम लाइक टेलिंग देम कि ये देख के आपको ट्राई तो करो करने के लिए. सो लॉट ऑफ पीपल गिव मी फीडबैक कि अभी लाइक लास्ट टू फ्यू मंथ्स माय मॉम हैड गॉन टू द नेटिव प्लेस, तो पूरा स्किन टैन होके आ गई. सो एंड शी वाज लाइक नीलिमा अभी ये कैसे दिख रहा है बंदर की जैसे चेहरा पूरा काला काला. एंड शी इज लाइक रोज बायोन मैंने उनको देखे रखा था. शी इज लाइक मैंने तेरा वो ना 2-3 दिन यूज कर मेरा स्किन टोन काफी कम होगा. शी लाइक इतना इफेक्ट हो रहा है. बीच में मुझे दिवाली के टाइम मैंने मस्त लोखंड का ये स्पून था मदर इन लॉ ने साइड में रखा था, मैं पूरा क्लीन करने क्योंकि गर्म था ध्यान नहीं, उठा लिया एंड इट वाज लाइक बर्निंग पूरा यहाँ पे मस्त ये हो गया. और इंस्टिंक्ट के हिसाब से बर्फ लेके लगा दिया. देन आई वाज लाइक यार बायोएंजाइम लगाना चाहिए था, ये नहीं लगाना चाहिए. तो फिर मैंने बोल में बायोएंजाइम का डाइल्यूटेड वाटर उसमें सोक किया, तो वो तब तक पूरा बॉईल आ गया था. बट आई केप्ट डूइंग इट फॉर 3-4 days. जब भी खाद खाली है रात को सोते टाइम I used to soak it. वो पूरा क्लियर हुआ. There was no mark, nothing, and healed in 7 days. So I was like, yeah, this works. So even my kids now know कि नहाने के पानी में एक छोटा कैप डालना है बकेट में and then नहाओ. तो एलर्जीज रिएक्शन जो इचिंग होता है गर्मी में एंड ऑल दैट वो काफी क्लियर हो रहा है. सो लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी फीडबैक्स की पिंपल्स काफी क्लियर हो रहे हैं फेस के. सो इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज. इट कीप्स योर इम्यूनिटी हाई बिकॉज गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहा है, बैड बैक्टीरिया को निकाल रहा है. So again, lab test and all that I haven't gone through, but lot of people who have done it, they are like ये proper 95% pathogen जो bad bacteria उसको निकाल देता है. So and if you see your chemicals वो तो सबको ही बाहर निकाल देते हैं, good bad सबको ही, and it actually gives you bad effects more ज्यादा. तो आई टेल देम कि आप लोग मेरे को इतना पूरा पूछ रहे हो पर आप खुद भी कोई केमिकल क्लीनर का बैक साइड देखो, उस पर तो इंग्रेडिएंट लिखे नहीं, अगर लिखे पढ़ लो तो वो कभी लोगे भी नहीं हाथ में. सो पावरफुल.
तो जितना आप यूज करने को ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो आई कीप टेलिंग पीपल की लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग, तो मेरा देख के देख मैसेज भी कि में ऐसे ऐसे प्रोपोर्शन बराबर है क्या, करो क्या, ऐसे डू इट। फिर वो पूछे कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं भी सीख सीख के करी हूँ। करो आप कुछ। नेचर दैट ऑल्सो आई फाउंड कि नेचर इज वेरी फॉरगिविंग। आप कंपोस्टिंग बोलो या ये बायोएंजाइम भी बोलो, कितना भी बिगड़ जाए यू कैन रेक्टिफाइड, यू कैन रीस्टार्ट विद इट इज नेवर गोइंग टू हर्ट यू। एंड अगर बायोएंजाइम खराब भी होता है तो आई टेल देम ऐसे मत फेंको, उसको डाइल्यूट करो, जैसे बायोएंजाइम यूज करोगे वैसे ही उसको डाइल्यूट करके आप डालो प्लांट्स में। इट विल नॉट हर्ट देम, इट विल हेल्प देम इन सम वे और द अदर। पर आप वो पूरा का पूरा खराब हो गया करके ड्रेन में पूरा डालोगे तो भी हेल्प हो जाएगा, बट ट्राई करो उसको डाइल्यूट करके यूज करो, बिकॉज नथिंग गोज वेस्ट एक्चुअली इन नेचर। हर एक चीज पूरा का पूरा यू कैन यूज टोटली टिल द एंड। तो कंपोस्टिंग का तो आई सी ऑब्वियसली पूरा, आई कैन सी द प्लांट्स, फ्लावर, पूरा बटरफ्लाई, वो सब पूरा दिख रहा है। बायोएंजाइम से भी दिख रहा है। सो इट इज आई एम सरप्राइज माई सेल्फ कि मैं जर्नी में कैसे आई। आई एम द पर्सन वो किचन में भी कभी नहीं जाऊंगी, एंड आई एम हियर मेकिंग इतना सारा बर्तन लेके छान रही हूँ बैठ के 2-2 4-4 घंटा लिटरली एंड डूइंग ऑल दिस। आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, बट आई वाज सेड कुछ तो था, आई हैड टू गेट इन टू दिस एंड कनेक्ट टू सो मेनी वंडरफुल पीपल। सो तो लॉट ऑफ पीपल कीप टेलिंग मी, फिर यहाँ से मिलने के बाद लॉट ऑफ पीपल आंटीज बताएंगे कि अरे हम लोग ऐसे करते थे, बट पहले ना हम लोग ऐसे सस्टेनेबल चीजें ऐसी थी। पहले हम लोग कहाँ ये यूज करते थे साबुन एंड विम एंड ऑल दैट, पहले राख से काम होता था। माय मदर इन लॉ इज द बिगेस्ट, मैं बोलती ना सस्टेनेबिलिटी गुरु घर में ही बैठा है। शी नॉनवेज कुछ बनेगा तो शी यूज बेसन का आटा, उससे धोए ये साफ करेगी ताकि वो स्मेल निकल जाए, ऑयल निकल जाए। आपका गेहूं का आटा छानने के बाद जो ये निकलता है कोंडा, हम लोग जो मराठी में बोलते हैं, जो थिक पार्ट होता है, उससे साफ करेगी तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल एंड ऑल दैट। सो दैट इज अ गुड थिंग। दीज वर स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी यूज्ड टू डू इट। आजकल हम लोग वो फास्ट एंड ट्रेंड एंड एड्स एंड ऑल दैट देख के, मीडिया की वजह से वी हैव चेंज सो मच कि वी डोंट रियलाइज, एंड वी आर सो स्टबर्न ऑल्सो कि वही चीज वर्क करेगा। वी आर नॉट रेडी टू चेंज बैक कि ये नेचुरल चीज इफेक्टिव। मुझे अभी भी कोई कोई पूछते हैं क्या गारंटी इफेक्टिव है। आई सेड अभी गारंटी में कोई ऐसे लैब टेस्ट या ऐसे कोई आर्टिकल्स लाके कितना भी दूं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लग रहा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू यूज इट, दैट इज द बेस्ट प्रूफ यू कैन हैव। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल नीलिमा। और आपकी ना ये स्टोरी सुनकर मुझे पहले तो एक कोट याद आ रहा है जेफ लॉटन का, which says that nature demands a gift for everything that it gives. So what we have to keep doing is returning leaf and compost materials back to the soil. Then we are continuously giving the gifts to nature because we have a return cycle. एंड आपकी ये जो कंपोस्टिंग जर्नी है एज वेल एज द बायो एंजाइम के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने उसके बेनिफिट्स बताए कि दे हैव द क्लीनिंग प्रॉपर्टी एज वेल एज दे हैव द हीलिंग प्रॉपर्टी एंड दे इंक्रीज योर इम्यूनिटी। बिकॉज बायो एंजाइमेटिक क्लीनर्स जो होते हैं वो सस्टेनेबल लिविंग को तो सपोर्ट करते ही हैं, दे आर ऑल्सो सेफ फॉर द एनवायरमेंट। बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें बनते हैं वो कहीं ना कहीं पर हमें केमिकल क्लीनर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सेफ्टी एंड जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल दे रहे हैं। सो ऑन जैसे आपने कहा कि कई बार अगर वो खराब भी हो जाता है तब भी उसे डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं, बिकॉज इट विल नॉट पोल्यूट द वाटर और द सराउंडिंग्स। बिकॉज उसकी एप्लीकेशन में ना एक कहते हैं ना नेचर से ली हुई चीजें हम नेचर को ही दे रहे हैं, सो वो कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा लाइक हार्श केमिकल्स। एंड जैसे आपने कहा ना कि बेनिफिट से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया कि क्लीनिंग के तो काम आता ही आता है वेरियस सरफेसेस, जैसे कि हम फ्लोर की बात करते हैं, ग्लास विंडोज की बात करते हैं, काउंटर टॉप से, उसी के साथ ग्रीसी यूटेंसिल्स, जैसे कि आपने अभी अपने मदर इन लॉ का एग्जांपल दिया कि शी क्लीन्स देम, यूजेस इट फॉर टू क्लीन। देन आपने रिपलिंग अबाउट द इंसेक्ट, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक मॉस्किटोज, मक्खी, एंड्स, कॉकरोचेस ये सब जगह हैं, एंड इनके लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्श केमिकल्स अगर हम बायो एंजाइम की तरफ स्विच करेंगे तो आई थिंक वी आर गिविंग इट अ बेटर टच रादर देन कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने वो केमिकल स्प्रे किया है तो आपको खुद को भी मास्क में रहना पड़ता है बिकॉज उसकी जो स्मेल होती है वो कहीं ना कहीं आपको भी बॉदर करती है। तो आई एम श्योर बायो एंजाइम के साथ ये नहीं होगा। एंड जो आप कहते हैं कि हम किसी भी हमारा रूम है सपोज, हम उसको डिओडराइज भी कर सकते हैं बायो एंजाइम के यूज से। फिर बाथरूम हो, आपका WC हो, आपका घर हो, कुछ डीक्लॉगिंग करना हो, कोई पुराना बर्तन हो, कहीं के पुराने लगे हुए दाग धब्बे हो, पेस्टिसाइड से होने वाली क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स है जो कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो चीजों से बनाए हुए हमारे बायो एंजाइम है
उसमें नहीं है, बिकॉज दे आर नेचुरल पेस्टिसाइड, दे आर हर्बिसाइड। एंड नीलिमा अगेन मैं मतलब सच में आपको थैंक यू बोलूंगी कि आप इतना अच्छा ये सफर चला रही हैं बायो एंजाइम एंड कंपोस्टिंग दोनों को लेकर, एंड द वे यू आर सेइंग एनर्जी लेवल्स मतलब आपकी बातों में ही मुझे नजर आ रहे हैं। बट आपने ये सारी चीजें जो खुद करके दिखाती हैं, एंड लिसनर्स यू कैन इवन गो एंड सी हर इंस्टाग्राम हैंडल, उस पे भी उन्होंने इस तरह की अपने रोज की प्रोसेसेस शोकेस की हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हाउ शी मेक्स अ बायो एंजाइम, हाउ शी हैज अ लॉज, किस किस तरह की वो बायो एंजाइम बनाती है। जैसे कि उन्होंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंगो का, कलिंगड यानी वाटरमेलन का, सिट्रस फ्रूट्स का, ग्रेप्स का। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बाय विच इट कैन बी मेड, एंड कंपोस्टिंग का। तो अगेन छोटा सा रिपीट करना चाहूंगी, कंपोस्टिंग यानी कि अपने किचन वेस्ट को मैन्यूर में बदलना, जिसमें कि शायद आपको रोज 5 या 10 मिनट देने हैं। एंड अगर आपको ये नहीं आता है, आप कंपोस्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो गाइस जस्ट कॉन्टैक्ट नलिमा, शी इज रेडीली अवेलेबल टू टीच यू। शी ऑल्सो कंडक्ट्स अ वर्कशॉप, जिस पर मैं अभी आपसे डिस्कस करने जरूर आऊंगी फॉर दिस अवेयरनेस। एंड दूसरी चीज है बायो एंजाइम, विच इज अ नेचुरल होममेड मल्टीपर्पज क्लीनर, जो कि फ्रूट पीस, फ्लावर पेटल्स और डिफरेंट चीजों से बनता है। इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस जो कि टाइम लेती है, जैसे कि नीलिमा ने शुरुआत में कहा था 3 महीने लगते हैं। तो सर्टनली नीलिमा ये आपको पेशेंस सिखाता है, जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। नीलिमा इन बायो एंजाइम्स को सिखाती भी है, बताती भी है और बेचती भी है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लेस योर केमिकलाइज्ड वाले क्लीनर्स जो आप घर में यूज कर रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑप्ट फॉर बायो एंजाइम्स। वेल नीलिमा, बायो एंजाइम और कंपोस्टिंग में ना सबसे ज्यादा जो लोगों के सवाल होते हैं वो होते हैं खराब होने को लेकर, जिसको कि आपने बताया कि अगर खराब भी हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर ऑप्शंस। आप जैसे सूखी मिट्टी डाल के, जैसे कि आपने अपनी क्ले वाली मिट्टी का एग्जांपल दिया, या आपने एंजाइम में कहा कि हाँ उसकी स्मेल आ जाती है, उसको भी हम कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि मॉनसून आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी होती है मॉनसून में कंपोस्ट को लेकर प्रॉब्लम्स की, ठीक है, या बायो एंजाइम में भी, बिकॉज मॉनसून्स में अमूमन हमने देखा है घरों में भी चीजें एट टाइम्स जल्दी खराब होती हैं। सो ऑलरेडी कंपोस्ट जिसमें कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। कैन यू जस्ट शेयर अ लिटिल बिट अबाउट इट कि क्या टिप्स लिए जा सकते हैं या क्या स्टेप्स किए जा सकते हैं, खास करके मॉनसून कंपोस्ट को लेकर? ओके। सो कंपोस्टिंग के टाइम बेसिकली इन जनरल ऑल्सो लोगों का ये रहता है कि मॉइस्चर, क्योंकि कंपोस्टिंग इज आपको हीट, वाटर एंड एयर चाहिए कंपोस्टिंग के लिए। तो एयर तो आपके कंटेनर्स में होती है, इफ यू हैव प्रॉपर होल्स तो उसको एरिएशन अच्छा होगा, तो अच्छे से कंपोस्टिंग होगा। तो उसके लिए मानसून में आप ट्राई कीजिए कि आपका जगह जहाँ पे रखा है वो एरी हो, पर बारिश नहीं आए, उसके अंदर पानी नहीं चला जाए। तो आपके जो कंपोस्टर्स है या जो भी आप यूज कर रहे हो, उसको आप चाहिए तो कहीं अंदर की जगह पे शिफ्ट कर लो वो 2-3 महीनों के लिए। या तो उसको प्लास्टिक से कवर करो, पर होल्स को ब्लॉक नहीं करो, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से होते रहे और पानी नहीं चला जाए। पानी ओवर हो जाता है, मॉइस्चर ऑलरेडी है उसमें बिकॉज ऑफ वेट वे अपना वेस्ट की वजह से। तो वो पानी को कंट्रोल रखने के लिए आप जितना ट्राई करो सको, तो एक तो पानी अंदर से, बाहर से नहीं, एक्सटर्नली जाए। जो इंटरनल पानी है उसका मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्राउन्स, जो भी आपके सूखे पत्ते हैं, कार्डबोर्ड है, सॉ डस्ट है, कोकोपीट है, जो आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से उसको अब्सॉर्ब कर ले। तो मॉइस्चर अगर कंट्रोल में रहेगा, एरिएशन अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपोस्टिंग बहुत बढ़िया चलता है। और उसको स्पीड अप करने के लिए आप आपके जो एक्सीलरेटर्स है, अगर आप डीआईवाई कंपोस्टर्स कर रहे हो तो आप चाहिए तो छाछ पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेट में और वेट डालना, तो वो डाल सकते हो। बायोएंजाइम इज अ वेरी गुड एक्सीलरेटर, वो आप डाइल्यूटेड, जरूरत नहीं पूरा कॉन्सेंट्रेट डाले, उसको भी डाइल्यूट 1:10 करके फिर आप थोड़ा थोड़ा सा डाल के उसको स्टर कीजिए अच्छे से। स्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बारिश में मन नहीं करता एक्चुअली कंपोस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत कीचड़ रहता है ऑलरेडी उसमें, वो जाके हिलाओ, स्मेल आती है एंड ऑल दैट। बट अगर आप करो तो अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है, सूखा रहेगा आपका, एकदम गीला गीला नहीं। एंड स्टरिंग की वजह से एरेशन अच्छे से होगा। सेकेंडली आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि क्या हो रहा है अंदर। पता चला आपने ऐसे 6-7 दिन ऐसे ही उसको रख दिया कि नहीं मन करे और वो बहुत ज्यादा वेट हो गया, उससे अच्छा आप अगर एवरी डे या अल्टरनेट डे देखते रहो, तो उसको आपको सुपरवाइज भी कर कि तो आप एक्शन ले पाओगे बराबर। अगर बहुत ज्यादा गीला हुआ है तो हाँ, मुझे थोड़ा सा और पत्ते डालने चाहिए, कोकोपीट डालना चाहिए, सॉडस्ट है आपके पास या कुछ है तो वो डालो, ताकि वो मॉइस्चर कंट्रोल में रहे। अगर गर्मी में होता है, बारिश में तो यूजुअली, और बॉम्बे जैसे हमारे है इसमें तो ह्यूमिड रहता है, तो वो वैसे भी वेट ही रहता है, तो वो कंट्रोल में रहेगा।
ड्राई होगा तो ऑब्वियसली यू कैन स्प्रिंकल, तो उसमें मैं वही लोगों को बोलती हूँ अगर स्प्रिंकल करना पड़ेगा, बहुत ड्राई हो गया तो बायोएंजाइम का पानी छिड़क दो ताकि वो एक्सिलरेट भी हो और गीला भी हो जाए। तो वैसे बट मानसून में इट्स दिस। एंड मानसून में लोगों को होता है कि कीड़े बाहर निकलते हैं, नॉलेट कीड़े बाहर निकलते हैं जब बहुत ज्यादा वेट होता है, या तो उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा उनको भी कंफर्ट के बाहर गीला होता है तब वो बाहर आते हैं, और वो होल्स में से ही बाहर आते हैं। तो आप ट्राई करो कि उनका मॉइस्चर अंदर अच्छे से रहे, और जब डिकम्पोजिशन अच्छे से होता रहे तो अपने आप हीट जनरेट होती रहती है, तो वो हीट से भी कंपोस्टिंग फास्ट होता है। तो आपके एक्सिलरेटर आप डालो, उसको कंपोस्टर को कवर्ड रखो, एक कोई नॉन बारिश वेट जगह पे रखो जाके पानी हिट नहीं हो, और आपका स्टरिंग अच्छे से करते रहो। ब्राउन्स बहुत सारे, थोड़ा आप अगर अगर एक दो मुट्ठी डाल रहे हो तो 3-4 मुट्ठी डालो, थोड़ा इसको बढ़ाओ क्वांटिटी जो ब्राउन्स डाल रहे हैं, ताकि वो ये। तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि मुझे भी बहुत दिक्कतें आई है बारिश में कंपोस्टिंग करने की, पर रोको मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपोस्टिंग बंद ही कर देते हैं बारिश में। अच्छा थोड़ा सा होता है, दैट्स द चैलेंज, वही तो हम लोग कर रहे हैं। वाई आर वी ट्राइंग टू डू ऑल दिस पूरा, तो बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन नहीं जाना है। तो ट्राई करो जितना हो सके, ऑब्वियसली कभी कभी नहीं होता है, लाइक एक मैं एक क्लाइंट बोल रही थी मेरे वो घर में आ गए पूरे कीड़े, एंड देन एवरीवन गॉट फ्रीक्ड आउट। तो वो हो रहा है तो ऑब्वियसली ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ा दिन ब्रेक लो या कुछ उसको फाइंड करो जब तक आपको सोल्यूशन नहीं है। अभी मुंबई में तो बहुत स्पेस का इशू है, पीपल के लोगों के पास जगह ही नहीं है। अभी खिड़की में ही रखा है बालकनी के इसमें ग्रिल में, तो पानी आने वाला है। सो ऐसे ठीक है, तो आप ट्राई करो उसको कि कहीं और शिफ्ट करो 2 महीने के लिए, या तो 1-2 हफ्ते उसको रुका दो, आप पेपर डाल दो। ट्राई करो थोड़ा सा ज्यादा डालेगा तो थोड़ा सा आपका गीला कचरा जो जरूरत है, पील सी जो सूखे वाले वो डालो। पूरा अगर बहुत ज्यादा कुक फूड और वो सब वो डाल रहे हो वो मत डालो, क्योंकि स्मेल भी आएगी। ऑलरेडी बारिश की वजह से बहुत गीले की वजह से स्मेल आती है, तो वो ट्राई करो। तो यू फाइंड योर ओन, बोलते ना कहाँ तक आप कर सकते हो उसको चैलेंजिंग। आपका बोलते ना कभी बोलते पिक योर बैटल्स, पूरा जीरो वेस्ट होना मुश्किल है, पर आप ट्राई करो जितना हो सके। बिकॉज अगेन कंपोस्टिंग में वही लाइक आई सेड, बहुत गीला होता है तो सोल्यूशन क्या है, आपको ब्राउन्स बढ़ाने हैं। बहुत सूखा होता है तो आपको पानी छिड़कना है। फंगस होता है, व्हाइट फंगस आता है, विच इज अ गुड थिंग, लोग डर जाते हैं। इट इज अ गुड थिंग, इट इज गुड, मतलब आपका कंपोस्ट बहुत अच्छे से हो रहा है। बिकॉज फंगस एक्चुअली इज नॉट बैड, क्योंकि ये सब चीजें फंगस ही एक्चुअली देखा जाए तो इट इज अ गुड थिंग। आप करो उसमें थोड़ा और ब्राउन्स डाल दो, आपके जो भी पत्ते हैं या जो भी आप अगर डेली डम का यूज करते हो उनके वो रीमिक्स पाउडर विच इज मैजिक पाउडर मैं बोलती हूँ, उसमें सब कुछ रेडी है, उसमें सब कुछ डला हुआ, वो डालो तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे कोई मिक्सेस आपके पास होंगे वो डालो कि वो जल्दी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। मेरे यहाँ भी कल 2-3 दिन से लिटरली लोग मुझे नीलिमा रिमिक्स पाउडर ही चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो रही है जल्दी, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा गीला हो रहा है बारिश की वजह से, तो थोड़ा और डाले तो फिर वो अच्छे से हो रहा है। तो दैट वे, तो वो आप ट्राई करो। तो अगेन जब तक आप हाथ नहीं डालोगे उसके अंदर तब तक समझेगा नहीं। सो अगेन ये नेचर का चीज है, हाथ गंदे करने हैं या तो एटलीस्ट खोल के तो देखो उसको। एंड पूरा टाइम लॉट ऑफ पीपल डू कि मेड कर लेगी, मेरा ड्राइवर कर लेगा, गार्डनर कर लेगा, करो, पर आप थोड़ा सा सुपरवाइज भी करो। आप नहीं आपके घर के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा एक आपका इनपुट खुद का आना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग। बायोएंजाइम में तो नहीं आती है कोई इशू मानसून में, अगर इफ इट इज एन एयर टाइट कंटेनर, अगर आप अच्छे से जगह पे रख रहे हो, बीच बीच में उसको भी स्टर करो, घुमाओ उसको। कभी कभी होता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज चला गया तो उसमें कीड़े हो सकते हैं, बिकॉज उसको हवा भी मिल गई और इनपुट भी मिल गया, तो वो ऑब्जर्व करो। उसके लिए स्टरिंग एंड चेकिंग, कंपोस्टिंग हो बायोएंजाइम हो, खुद थोड़ा सुपरवाइज करना इज अ गुड थिंग। मतलब आपको फिर वो दिक्कत नहीं करेगा बाद में एक्सकेलेट करके, तो वो करो। एंड बेसिकली अगर बायोएंजाइम में भी अगर कीड़े होते हैं तो छानो पूरे इसको, थोड़ा गुड एक्स्ट्रा डालो, एंड देन कंटिन्यू द प्रोसेस। चाहिए तो वो बैच अलग से रखो टू ऑब्जर्व कि उसमें अगर फिर से कोई अंडे रह गए तो फिर से हो रहा है नहीं। सो दैट वे, सो बेसिक यू कैन हैंडल कंपोस्टिंग एंड बायोएंजाइम इन मानसून, पॉसिबल है, थोड़ी एफर्ट एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। वंडरफुल नीलिमा। और जब आपने अभी कहा ना हाथ की बात, तो कल ही एक्चुअली वर्ल्ड ट्री डे था, तो मैंने खुद एक कोट लिखा था यही वाला कि जब तक अपने अपने हाथों से एक सैपलिंग नहीं लगाया है, जब तक हाथ गंदे नहीं हुए, जब तक आपने उसको पानी नहीं दिया है, उसको बढ़ते आपने प्लांट नहीं किया है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। सो सिमिलर थिंग कि जब तक आप उसमें हाथ थोड़ा सा गंदा नहीं करेंगे, थोड़ा सा उस मिट्टी को छूकर महसूस नहीं करेंगे। मैं ये कहूंगी नहीं कि गंदा करना है, मैं तो कहूंगी यार मिट्टी है हमारी खुद की, अच्छी धरती है, उसमें हाथ डालने से गंदा कैसे हो सकता है? इट इज वॉशेबल, यू कैन वॉश इट। सो वहां पर जब तक आप नहीं पहुंचे हैं, आपने वो जर्नी आगे नहीं बढ़ाई। एंड जब ये हाथ लगाने की बात हम करते हैं ना, तो इससे भी मुझे एक बहुत प्यारा सा कोट याद आता है बाय नाथन, दैट organic gardener does not think of throwing away the garbage. She knows that she needs the garbage. She is capable of transforming the garbage into compost.
so that the compost can turn into lettuce, cucumber, radishes, and flowers again. With the energy of mindfulness, you can look into the garbage and say, I'm not afraid. I'm capable of transforming the garbage back into the love. एंड नीलिमा, आपके ऊपर ना ये कोट बहुत ज्यादा सूट होता है, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं कि हम उस गार्बेज, उस वेट वेस्ट, उन पील से घबरा नहीं रहे हैं, आई एम नॉट अफ्रेड, बल्कि हमारे पास ताकत है उस गार्बेज को ट्रांसफॉर्म करने की, कंपोस्ट जिसे कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और बायो एंजाइम जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन दो चीजों को बनाने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, एंड बहुत बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जब बात करती हूँ नीलिमा, यू कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑल्सो, जो कि जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपके इंस्टा के प्रोफाइल पे भी देखा था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ऑल द लिसनर्स हु आर कीन टू लर्न अबाउट दिस कंपोस्टिंग जर्नी या सस्टेनेबल लिविंग या बायो एंजाइम के बारे में, तो उन वर्कशॉप्स के बारे में बताइए कि आप कैसे, कहाँ कंडक्ट करते हैं, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? So I've recently started. पहले तो I love one and one बात करना, but I've recently started. So I've sort of put up like बोलते ना, मैंने भी बैठ के कभी पोस्टर बनाया नहीं एंड ऑल दैट। ऐसे चलो करके देखते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नीड दैट, एंड लोगों को होता है कि हम नहीं घर पर पहुंच पाते तेरे, तो क्या करें। तो आई थॉट दोनों ऑप्शन रखते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मुझे ऐसा लगता है मे बी मेंटल ब्लॉक है कि मुझे प्रेपरेशन, बहुत कैमरा रखना पड़ेगा, सब सब चीजें, एंड आई एम लाइक यू सी राइट नाउ ऑल्सो टॉकिंग में, आई कांट गिव छोटू छोटू सा, आई लव टू पूरा खोल के दिखाओ ये वो काइंड ऑफ। तो वो जगह भी एंड प्लानिंग एंड ऑल दैट, हाउ विल आई सेट अप एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा है। बट लाइक आई डिड बीच में एक वर्कशॉप, आई जस्ट पुट आउट थिंग कि मुझे आई एम डूइंग अ वर्कशॉप, किसको आना है। 8 लोगों ने रजिस्टर किया, 3 लोग कोइंसिडेंटली पहुंच पाए। तो एक दो लोग तो कहाँ कहाँ से आए हुए, लाइक सरप्राइज कह रहे यार इतना दूर से तुम आए, तो बोलते नहीं हमको सीखना तो है। और कोइंसिडेंटली उन्होंने ऑलरेडी ये डेली डम के मेरा वो पढ़ के दे हैड बॉट द कंपोस्टर, ऑर्डर किए थे, घर पे पहुंचे नहीं थे। तो दे आर लाइक, मेरे तो वीडियो देखी तो हो जाएगा, बोलते नहीं पर हमको करना है। एक लेडी जो खुद इतने सालों से कर रही है, शी लाइक मुझे तो भी सीखने को आना है, बिकॉज शी लाइक ये छोटे छोटे जो तूने नुस्खे नुस्खे टिप्स बताए या कुछ बताए, वो हमको नहीं पता थे, एंड व्हाई इट हैपेंस, क्या नहीं हो रहा है, क्यों होता है, या उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सब पता नहीं था। तो तूने इतना बैठ के लिटरली 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स भी कम पड़ गए थे हम लोगों को, लिटरली लेडीज है उनको घर जाना है करके, आई हैड टू लाइक कट शॉर्ट की बस अभी इतना ही बात करना है। तो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। तो आई एम ओपन टू डूइंग वर्कशॉप्स एंड ऑल दैट। सो पहले आई यूज्ड टू वेट कि सोसाइटीज में कभी मुझे बुलाएंगे, सो आई टेल पीपल कि, वो लोग बोलते हैं कि आप आके सोसाइटी में करो। आई सेड मैं आके कोई एजीएम में या कहीं खड़े होके, कोई आपकी दूसरी मीटिंग में आके मुझे कोई इनवाइट करेगा, मैं बोलूंगी नॉट, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, क्योंकि उनको नहीं सुनना है। वो एजेंडा कुछ अलग से आए थे, और अब बीच में ये मैं करूँ, कोई पार्टी चल रहा है उसमें मैं, मुझे 15 मिनट का टॉक के लिए टाइम दे देंगे और उसमें मैं ये बात करूँ, मूड ऑफ हो जाता है। इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। अगर आप कहीं ऑर्गेनाइज कर पाओ कि आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में 4-5 लोग आर इंटरेस्टेड and they would like to love to do it, and you have the house or the space, I can come over, या तो आप यहाँ पे आ जाओ, कोऑर्डिनेट करते टाइम एंड स्पेस, कम ओवर। ऑनलाइन के लिए भी हम ओके कि चलो ट्राई करते हैं। लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर नाउअडेज ट्राइंग टू रीच आउट कि उनको CSR फंड्स के लिए एंड वॉट एवर द एक्टिविटीज के लिए दे नीडेड। सो बीच में आई डिड वन वर्कशॉप विद डेली डंप ओनली, वन ऑफ द अदर पार्टनर्स. So we did it. He did about composting. He talked about that. I talked about bioenzyme. So those also are good. So they can take it from their इंडिविजुअल कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग अगर उनके एम्प्लॉयज को सिखा रहा है वो भी कर सकते हैं, या तो एज अ कम्युनिटी कंपोस्ट अगर पूरे उनकी कंपनी के कैंटीन्स के लिए वट एवर के लिए उनको लगवाने हैं, तो दैट ऑल्सो वी कैन गाइड। सो थ्रू डेली डंप और पर्सनल लेवल पे आई एम डूइंग इट। बायोएंजाइम्स का मैंने 1-2 फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज किए थे उनके सोसाइटी में, सो आई हैव डन दैट। सो लॉट ऑफ पीपल आर समटाइम्स डिपेंड्स ऑन क्या आपको आपका इंटेंशन है ऑफ दीज वर्कशॉप्स। सो लाइक एक वर्कशॉप बायोएंजाइम में माई फ्रेंड वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि लोगों को बनाना नहीं है, दे वुड लव टू बाय इट, उनको मेहनत नहीं करना है। सो तू सिर्फ यूजेस के ऊपर, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन, उसके ऊपर भी है। कभी अभी बीच में आई डिड अ वर्कशॉप फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड हु रन्स एन एनजीओ, शी गॉट स्लम किड्स फ्रॉम हर एरिया where she is trying to get up cleanliness drives and all that done. तो she said नहीं नीलिमा, उनको सिर्फ तो वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों एंड ये सस्टेनेबल हैबिट्स क्या है, ये लोग पढ़ते रहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से ऐसे एग्जीबिशंस में जाते रहते हैं, बट थोड़ा सा होता है ना लिटरली इन डीप ड्रिल करके उनको एक्सप्लेन करना है क्यों वो कर तू।
That's it. उनको वो, and then she is going to take them. These will be the leaders who will lead these cleanliness drives in their localities. So she's like, वो बच्चों को समझेगा, then they'll be able to tell the parents and get their community to evolve. और बच्चों का लोग easily सुन लेते हैं. So that's how we want to. So I literally sat down with them कि ये काली बैग में क्यों नहीं कचरा डालना है. तो काली बैग प्लास्टिक है, अगर वो कंटेमिनेट हुई तो रिसाइकल नहीं होगी. आपका जो कचरा उसके अंदर गया है वो ऑलरेडी गंदा हुआ है, उसमें मैगॉट्स हो गए, सब हो गया, तो वो कंपोस्टिंग के लिए भी दिक्कत, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्लास्टिक लीच हो चुका है, तो वो कहीं कंपोस्टिंग के लिए भी वो हानिकारक ही है, तो वो नहीं करना है. लिटरली मतलब आप चॉकलेट लाओगे तो उसको कैसे डिस्कार्ड करोगे, उनको मतलब क्वेश्चन कर करके उसको पहले धोओगे, उसको सुखाओगे, फिर रिसाइकलिंग को ऐसे ही नहीं भेजोगे. जोमेटो से कुछ मंगाते हो उसको क्यों धो के भेजना है डब्बे को, ये सब छोटी छोटी चीजें. सो डिपेंडिंग ऑन what the intention is, I am open to doing it. And I put up workshops and all that. Schools में I'm trying to get into my kids and all that कि वहां पे कर सके तो. So I'm like open to this. Most of the time I'm on DMs only helping out people, Instagram and all that पे. But love to this, and people just message me कि हम लोग घर पे आ जाए क्या. I said come. So that way. So I'm trying to reach out as many people I can. If अगर group मिल जाए तो it will be good for me also, because I can talk to a group who's interested and उनको intention ही वो है कि मुझे सीखना है, and they are ready to do it. So online, offline, both options are there. Corporate societies, institutes, they can connect with me. We can take it forward. Even I am learning, they are also learning. So every session is a learning thing for me. A lot of people come कि ये composting इतना सब करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो नॉर्मल गमले में डालते थे, उसमें पूरा ये मट्टी डाल दे, उसके ऊपर एक पेड़ लगा दे. सेड वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. ऐसे करके हम लोगों ने पूरा बैल्कनी भर दिया. ऐसे चलो, दैट वाज आल्सो लर्निंग फॉर मी. सम आंटीज आर लाइक, हम लोग सीधे जो पील्स उसको क्या करते, 2-3 दिन खिड़की में रख देते, वो सूख जाते हैं, फिर उसका क्रश करके वो वही कुंडी में डाल देते. क्या फर्क, उसको इतना सब करने की क्या जरूरत है. ऐसे कचरा बाहर नहीं गया, गुड. दैट इज द वे हाउ यू, दैट इज द सस्टेनेबल वे. तो अभी मुझे कोई कोई लोग बायोएंजाइम भी बोलते हैं कि चेन्नई भेज दो, बैंगलोर भेज दो. बोले बैंगलोर एंड चेन्नई इज द हब, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट. अब वहां से लो, नहीं नहीं मुझे तुमसे लेना है. बोले तो ये कार्बन फुटप्रिंट एंड सस्टेनेबिलिटी का जीरो, मतलब इट इज टोटली रॉन्ग. आई वुड लव अदर पीपल, भले मेरा बिजनेस जा रहा है, बट दोज पीपल यू शुड कनेक्ट विद, तो वहां से आप लो. दैट इज द, जितना हो सके आई ट्राई टू डू इट मेरी तरफ से. सो दैट वे you can Wonderful connect. and kudos Nilima, मतलब जिस तरह से you are providing the awareness and information to people, and so nice of you to say that you are always available on DMs, Instagram and these social media handles to answer the queries which people have, because लोगों को इन सबको करने के लिए ना हिचक होती है, हिचक होने के बाद सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, and so beautiful and so much of energy you have कि आप उनके सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हैं. I'll again tell my listeners कि Nilima is available, like her Instagram handle is Nilima Mohite and her sustainable solution handle is Su Nilima Sustainable Solutions, जहां पर आप नीलिमा से कांटेक्ट कर सकते हैं, whether it is for gardening, composting, bioenzyme, segregation, या फिर आप वर्कशॉप चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं उनके साथ करना, तो नीलिमा इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस. हर उनकी वेबसाइट का नाम है sunilima.in. नीलिमा, मुझे नहीं पता आपकी सुनीलिमा में SU का मतलब क्या है, पर मैं आपको सुपर वुमन बनाने वाली हूँ, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी एंड आपकी बातों से पता चलता है द वे यू हैव come to this level in last 4-5 years कि आपने खुद कंपोस्टिंग की, ये नहीं कि ओके मेड कर देगी ड्राइवर. आपने बिल्कुल सही कहा, मैक्सिमम लोग ये चाहते, पर मैं फिर से कहूंगी प्लीज हाथ खुद डालिए. कचरा आपका है तो कंपोस्ट भी आपका होगा, और वो बायो एंजाइम जो क्लीनर बनेगा वो भी आप ही के लिए बनने वाला है. इतना सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा. अगर अर्थ हमें कुछ दे रही है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिटर्न टू इट, कि सिंपल घर के ही अवेलेबल वेट कचरे से हम कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो कि हम वापस अर्थ को दें और उसको हार्म ना हो, बिकॉज उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है. सो वंडरफुल नीलिमा, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी एनर्जी ऐसी ही कायम रहे, इसी तरह से आप वर्कशॉप करें, लोगों को बताएं एंड इसी तरह से अवेयरनेस को फैलाती रहे. एक चीज और जो हमारी रह गई है, दैट इज अबाउट द बर्तन बैंक. सो गाइस, नीलिमा हैज स्टार्टेड दिस वर्कशॉप एंड बायोएंजाइम के साथ ही बर्तन बैंक. बर्तन बैंक का मतलब होता है हमें डिस्पोजेबल कटलरी को यूज ना करते हुए ऐसी कटलरी को यूज करना है जो कि रीयूजेबल है, एंड विच इज सर्टनली जिसमें कि हमारा स्टील सबसे पहले आता है. देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, बट या इन बर्तन बैग इन कटलरी
You can rent reusable steel cutlery at some cost, clean and send back. So Nilima, ये सफर कैसे start हुआ and how means in which area are you functional and how to contact you अगर किसी को अपने घर के function या किसी के लिए बर्तन चाहिए हो and आप किस तरह से इसमें काम करती हैं? Okay, so Bartan Bank, like again, Instagram guru. So I've been listening, hearing about it, ki cutlery on rent and all that. So earlier, again, I've been guilty. Paper plates लाते थे, thermocol plates लाते थे घर में, birthdays है बच्चों का, गणपति है. So ठोक के भाव में बोलते ना, 100 लेके आए एक साथ and using it, been guilty of doing that. And then I think my son was 2 years, 3 years. तभी ऐसा चलो जितना हो सके हम लोग जीरो प्लास्टिक, जीरो ये एंड मटीरियलिस्टिक, हम लोग बच्चों को ट्राई करें मटीरियलिस्टिक नहीं बने. तो आई डिड अ प्लांट थीम की बर्थडे को रिटर्न गिफ्ट हुए प्लांट्स, बच्चों ने खुद ही बना के लगाए. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक यार मैं प्लास्टिक के या थर्मोकोल की प्लेट्स क्यों मंगा रही हूँ? इफ आई एम डूइंग दिस एंटायर थीम ऑफ द बर्थडे इज नेचर एंड ऑल दैट, तो ये क्यों कर रही हूँ? देन आई सेड चलो क्या करते हैं. सो आई आस्क्ड माय मॉम टू गेट सम प्लेट्स. ननद को बोल दिया आप ग्लासेस लेके आ जाओ, तो स्टील के ही. सो असॉर्टेड दिस, आई फाउंड बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दे वॉन्ट टू ईट देयर स्नैक्स, हैव द केक, एंजॉय करना है एंड दैट वे. तो मेरे थैंकफुली दोनों बच्चों के बर्थडेज आर लाइक नॉर्मल. मैं कोई उनके लिए कोई बोलते ना आर्टिस्ट मंगाओ, एंकर कोई तो मंगाओ, इवेंट ऑर्गेनाइजर मंगाओ, कुछ नहीं. आई एम लाइक गार्डन है ये, तुमको मैं चाहिए तो बबल्स के लिए वो ये दे देती हूँ, खेलने के लिए टॉयज देती हूँ, बॉल्स देती हूँ, आपको जो खेलना है खेलो. That way. Those are my simple birthdays. Return gifts भी slowly I have stopped. Secondly, gifts भी मैं लाने नहीं देती हूँ. So there वहां से मेरा वो चालू हुआ था कि every गणपति and all that प्रसाद देना है तो we used to get Ziploc के bags प्रसाद डालने के लिए. फिर वो चीकट होता है, वॉशिंग में इशू हो रहा है. मैं since I'm segregating plastic, तो मुझे वो होता था. फॉइल डब्बों का भी वो ये कि मैं दे रही हूँ, मुझे पता है फॉइल कैन बी रिसाइकल, वॉश करके आप दे सकते हो, बट नॉट माई पीपल, जो जिनको दे रही हूँ मैं गेस्ट को, उनको तो नहीं होगा. सो व्हाट डू आई डू? और ये हमेशा नहीं कर सकते कि हम लोग बाहर से मम्मीज और सबसे प्लेट्स मंगा रहे हैं. सो आई ट्राइड दोस बगैस का प्लेट्स, कॉर्न स्टार्च एंड ऑल दैट का प्लेट्स. तो उसमें भी आई नोटिस कि आई पुट देम इन माई कंपोस्टर्स ड्रम्स में एंड ऑल दैट. दे डिडंट ब्रेक डाउन, नहीं हुए. बाहर निकाले उनको, 7-8 दिन पानी में रखा, उनका पल्प बनाया एंड देन आई पुट देम, देन दे डिग्रेडेड आफ्टर 3-4 months. तो आई वाज लाइक ये नॉर्मली कंपोस्ट नहीं हो सकते. दे से दे आर कंपोस्टेबल, तो ये इजी नहीं है कंपोस्ट. हाउ डू वी गो बैक? तो इट वाज लाइक अगेन स्टील. सो आई वाज लाइक स्टील. तो मैं बहुत दिनों से आई यूज्ड टू शेयर विद माय फैमिली. तो माय फादर इन लॉ इज लाइक तू इतना सोच रही है एंड यू कीप टॉकिंग अबाउट दिस कटलरी ऑन रेंट, कटलरी ऑन रेंट. एक काम कर, अपने घर के लिए 25 प्लेट्स मंगा दे एंड ग्लासेस एंड स्पून्स एंड ऑल दैट. तो अपने घर के गणपति एंड फेस्टिवल्स के लिए वील यूज दैट. तो आई स्टार्टेड विद दैट कि आई गॉट 25 प्लेट्स में गणपति था. तो दैट टाइम आई रियलाइज माई मेड यूज टू गेट फेड अप कि वो घर के 10-15 प्लेट्स ही है. हर गेस्ट के वो बोलते हैं हम लोग पंगत, जो एक एक रो बैठता है खाने के लिए. मैं आई हैव 30-50 पीपल समटाइम्स एट दैट टाइम फॉर लंच और डिनर. तो वो मेड को बेचारी को शी हैज टू वॉश दोस प्लेट्स. तब तक वो गेस्ट को बोलो रुको, नेक्स्ट लॉट को फिर दो, फिर से पोछो, फिर लेडीज जो हम लोग सर्व करें उनको भी रुकना पड़ रहा है, उनको फिर से बना. सो व्हेन आई गॉट दिस इट वाज इजी. हम लोग फटाफट 10-15 प्लेट्स लगाते थे, सर्व कर देते थे. दूसरा लॉट तब तक हो रहा है, तीसरा. द मेड वाज हैप्पी. शी इज लाइक मेरे को 10 बार वो एक प्लेट नहीं धोनी पड़ रही है, आई एम ओके विद दिस. तो शी वाज लाइक हाँ. तो आई ऐसे चलो ये ट्राई करते. देन आई गिव इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओनली. शी इज रन्स एन एनजीओ. शी हैड अ ह्यूज मीटिंग. सो शी लाइक आई टुक इट एंड वहां पे सब सीनियर सिटीजन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स जो आए थे. एंड दे वर लाइक यार ये इसमें खाना इज इजी, इट इज नॉट, ये नहीं हो रहा. पेपर प्लेट जो पूरी ढंगल जाती है वो नहीं हो रहा. इट इज स्टर्डी, स्टील है. एंड खाने में आई हैव टेकन दोस कंपार्टमेंट वाला प्लेट सो दैट वो कटोरी एंड ऑल दैट का इशू नहीं हो. सो उसमें सर्व करने के लिए भी इजी हो रहा है. इट इज नॉट मिक्सिंग, आपका लिक्विड्स एंड ऑल दैट आर नॉट मिक्सिंग. इजी है, खाने के लिए इजी, और घर वाली फीलिंग आ रही है. हम लोग कहीं बाहर जाके बुफे में खा रहे हैं वैसे नहीं लग रहा है. ये स्टील है तो क्लीन भी है, अच्छा भी है. एंड माई फ्रेंड वाज लाइक मैंने क्या फटाफट 2 मिनट, 1-2 लेडीज हम लोग ने फटाफट उसको वॉश करके घर पे, इट वाज आउट स्टेशन. सो शी गॉट इट बैक ऑल्सो. शी लाइक मुझे थोड़ा एफर्ट लगा बट इट वॉज ईजी. देन स्लोली बर्थडेज के लिए पीपल स्टार्टेड टेकिंग एंड ऑल दैट. सो एक ये इवेंट था, उनको 50 ही चाहिए. तो दे आर लाइक नीलिमा हम लोग गारंटी दे रहे हैं तुझे, तो 50 ले 25 ही था, एक्सटेंड इट. एंड छोटे प्लेट्स भी ले, जो पाव भाजी या इडली सांभर. सो आई गॉट दोज ऑल्सो. सो छोटे चाय के दिस, बिकॉज चाय और जूस देना है बच्चों को बर्थडेज के लिए, तो वो बड़े ग्लासेस में कितना देंगे, तो छोटा चाहिए. तो आई गॉट दो. सो आई बोलते ना इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट इन टू दैट.
and I got it, and now it is doing good. So मेरा सिर्फ ये रहता है कि I'm restricting myself to Thana and Mumbai more of Thana, because इसका क्या होता है, रेंट मैंने एक नॉमिनल अमाउंट रखा है, द ट्रांसपोर्टेशन बाय पोर्टर और दिस इज टू हाई, सो आई रिक्वेस्ट पीपल टू कम होम इफ यू ऑल कैन पिक अप एंड टेक इट अवे. So that way, so जितना हो सके ठाणे, and I would encourage more and more people to start these cutlery banks in your own localities and spare this. So abhi even in Thana there are 2 people who are doing it along with me, but still we are short. I can't reach out to everyone because ये पूरा एक्सरसाइज करने का इशू पर्पस क्या है, to make it sustainable, to make reduce carbon footprint, to increase reusables. पर अगर हम ही पहुंच नहीं पा रहे, then so most of the time people who come back to me कि हमको चाहिए, and it's very far off, 50 किलोमीटर जाना आना. ऐसे आप एक काम करो, मेरे से नहीं ले सकते हो दही, कहीं और से नहीं, आप आपके नेबर्स से 10-10 प्लेट्स ले लो, बिल्कुल, एंड डू द फंक्शंस. या तो आप अगर सोसाइटी के लिए कर रहे हो तो आस्क ईच मेंबर टू गेट देयर ओन पेपर प्लेट्स एंड ग्लास एंड स्पून्स, घर पे लेके जाओ होने के बाद. लॉट ऑफ पीपल, अभी भी मेरे यहाँ पे भी इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में, तो आई गेट दोस प्लेट्स, पर वो लोगों का वो होता है अभी कि अभी तेरे को झूठी प्लेट कैसे दे दे. ऐसे वहां पे मैंने वॉशिंग के लिए रखा है, सिर्फ दो आई विल वॉश इट एट होम. नहीं नहीं नहीं, हम लोग वॉश करके देंगे, उनको भी हिचकिचाहट होती है. नाउ माय सोसाइटी लाइक कि हम लोग भी एक पूरा सेट लाके रखेंगे, तो तुझे बोलना है कि जरूरत नहीं, हर इवेंट के लिए हम लोग हमारी सोसाइटी का पूरा वो सेट यूज करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो गुड. इन अभी वो कर लो आप जितना हो सके दैट वे. सो आई वुड एनकरेज पीपल टू स्टार्ट देयर ओन. अगर छोटे से छोटे 10 प्लेट या 20 प्लेट से शुरू करो, स्टार्ट इट, बिकॉज इट्स वेरी इजी. नॉमिनल अमाउंट है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि अभी मैं जहां पे भी स्टॉल, कभी एग्जीबिशन में भी बताती हूँ, इट इज पहले तो लोग खंबा देख के आते हैं बिकॉज मट्टी का कुछ देख रहा है, फिर बैलेंस तो वाओ ये एक बॉटल दे दो, एंड देन ये सुनते तो अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है. सो इट इज लाइक आई वाज लाइक अरे सब कुछ तुमको अच्छा लग रहा है, सो आई एम लाइक गुड, चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ. सो दे आर लाइक ये तो हर बर्थडे में, हर सोसाइटी में इसको तो आपका रोज ही चलेगा ये इन डिमांड. पर नॉट मेनी पीपल सुनते हैं, सब लोग आते नहीं करने को, क्योंकि सबको थोड़ा सा इश्यू है कि फिर से वो मेड को धोने. तो एक लेडी ने मुझे वही बोला, हाँ अच्छी बात है पर धोना पड़ेगा ना. ऐसे हाँ धोना तो मैं आपको साफ दे रही हूँ, तो आप मुझे साफ ही दोगे ना वापस. व्हाई वुड आई टेक झूठा वाला प्लेट, आपको धोना है, धो के देना है. सो दैट वे. सो इट इज, उसमें भी मुझे टीथिंग इश्यूज आए हैं, लाइक पीपल सेंड दिस बट दे आर नॉट क्लीन, मिसिंग हो जाते हैं आधे चीजें. तो आई टेक अ लिटिल डिपॉजिट, आई आस्क देम कि आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर दिस, बट आप थोड़ा ध्यान रखो. व्हाई डिड वी डू दिस एंटायर एक्सरसाइज इज टू रिड्यूस दिस. कोई स्टेटस सिंबल के लिए या आई एम ट्राइंग टू बी कूल, वो नहीं है. द इंटेंशन बिहाइंड इज, एंड योर किड्स आर वॉचिंग. आप बर्थडे के लिए यूजुअली लेके जा रहे हो, योर गेस्ट किड्स आर वॉचिंग कि मम्मी पापा ये कर रहे हैं, तो इट इज अ गुड हैबिट, तो वो भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम करने के लिए. सो लाइक माई डॉक्टर हैज बीन, स्कूल में उनको मिल्क देते थे मंडेज को, तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि पेपर कप में दिया. शी वेंट एंड टोल्ड द प्रिंसिपल ये अच्छी बात नहीं, पेपर कप में पीना नहीं चाहिए. तो प्रिंसिपल लाइक भाई आज तेरे क्लास के लिए कम थे, उसके लिए हम लोगों ने पेपर, बाकी सबको स्टील में दिया है, नेक्स्ट वीक मिलेगा. सो किड्स आर बिकमिंग सो अवेयर, एंड आई एम लाइक ग्लैड कि दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस. अभी हम, मेरा भी कभी कभी हिचकिचाहट होती है कि मुझे दिख रहा है लोग गलत कर रहे हैं, और आई डोंट गो एंड टेल देम कि ये, पर कभी पोलाइटली बोलो, दे आर रेडी टू लिसन कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है. बैग्स का यूजुअली होता है कि सब्जी ले रहे हैं तो प्लास्टिक बैग में लेते रहे, तो आंटी आपके पास बैग है ना, अंदर हाथ में तो एक है बैग, हाँ बेटा हाँ उसमें डाल दो, हाँ बेटा इसमें डालो. सो यू हैव टू टॉक इन पोलाइट वे जितना कर सको. यू डोंट, बिकॉज नॉट एवरीवन इज, किसी को जानबूझ के नहीं कर रहा है, जस्ट दे डोंट नो, दे आर क्लूलेस या अवेयरनेस नहीं है, और दे डोंट नो हाउ. सो स्लोली जितना हो सके. सो आई कॉल इट द बर्तन बैंक. तो वो नाम बहुत अच्छा लगा है सबको कि बर्तन बैंक क्या है, and it is doing good. So again, last September say started, it will be a year, and I'm getting good response for it. Meeting lot of new people because of that, and these people are who are actually trying to do something. Again, they want to do something for their own events and that way. So it is doing good. So even I'm learning for that. That's really wonderful, नीलिमा. And आपने ना बहुत अच्छी चीज कही, ये वाली धोना है. मुझे समझ नहीं आता सडनली कन्वीनियंस में नहीं, ये धोना एक प्रॉब्लम कैसे बन गया. मतलब व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस मराठी सेटअप, तो अपन लोगों में जो गणपति एंड महालक्ष्मी होती है, तो इट्स ऑल पंगत में रो ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड हैविंग. सो उसमें 50-100 इज अ वेरी नॉर्मल थिंग जो हो जाता है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर लाइक मेरी दादी नानी के टाइम, इवन माय मॉम को मैंने कैरी करते हुए घर में ना ताट, लाइक अ बिग प्लेट, घर में 15-15 ऑलरेडी हुआ करते थे. बट विद दिस सेटअप जो न्यूक्लियर सेटअप हो गया, उसमें ना चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिक्लटर नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि चीजें होल्ड करनी चाहिए, लेकिन जरूरी चीजें, आई थिंक
थिंक घर में 8-10 प्लेट होना इतना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल 4 ही रखनी है, कि डिस्पोजेबल यूज करके सिर्फ थ्रो कर देना है, वो काली थैली कहाँ जा रही है उसकी कोई आप फिक्र नहीं कर रहे। सो आई थिंक ये एक बेसिक नेसेसिटी है, स्टील की प्लेट है। अगर मैं कहूंगी कि आप कुछ नहीं है तो पुराने टाइम पर जैसे चाइना क्रॉकरी भी, चलिए उसको हैंडल करना मुश्किल Yeah. होता है, मैं समझ सकती हूँ। उसके अलावा मेल्मोवेयर बीच में चला था, मैं प्लास्टिक के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो ड्यूरेबल है, वो Reusable. सालों चलते हैं। लाइक मेरे पास खुद 20 साल पुराना सेट है, आई थिंक मैं इसको और अगले साल तो ऐसा प्लास्टिक जो कि मैं फेंक नहीं रही हूँ। कभी कभी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको फेंकने मत जाइए, आप उसको रीयूज करिए जब तक आप कर रहे हैं। एंड स्टील सर्टनली, मतलब वॉश करने से क्यों डरना है? अपने हाथ आप ना कंपोस्ट पे गंदा करना चाहते हैं, ना बायो एंजाइम में, ना बर्तन, ऐसे नहीं चलेगा। सो मेरे लिसनर्स से, सभी दोस्तों से, सभी ग्रीन वॉरियर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिर्फ धोने से मत हिचकिचाइए, हाथ गंदे होने से मत हिचकिचाइए। आप नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए पानी है, मिट्टी है, हवा है, इन सबको आपको महसूस भी करना पड़ेगा। कुछ भी ना करके सब कुछ मिल जाना ये संभव नहीं है। एंड जैसे कि नीलिमा ने शुरुआत में कहा था, हम अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या हम बच्चों को सिर्फ लैंडफिल्स देने वाले हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ एक पोल्यूटेड एयर देना चाह रहे हैं? नहीं, आई थिंक हम अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। उसी के लिए शायद हम कमाते खाते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। तो सिर्फ पैसा और एक अच्छा ब्रांडेड स्कूल ही सब कुछ नहीं है। ये नेचर, एक शुद्ध हवा, पीने के लिए साफ पानी और एक रहन सहन अच्छा, ये सब अगर इंश्योर करना है, पोल्यूशन कम करना है, अच्छी चीजें यूज करनी है जिसमें पेस्टिसाइड ना हो, तो आई थिंक इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और नीलिमा, जैसे आपने कहा ना कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। एंड जैसे आप यहाँ अगर वाव कहा ना, तो यस, बायो एंजाइम के लिए वाव, कंपोस्टिंग के लिए वाव, बर्तन बैंक के लिए वाव, यस, यू सर्टनली डिजर्व अ पार्ट विल कॉल, बिकॉज आप सच में मेरे लिए, आई विल कॉल यू सू नीलिमा, के लिए मैं सुपर वुमन ही वर्ड यूज करूंगी, बिकॉज आप ना वो नहीं कर रही कि मैं क्यों करूं। बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लोगों के साथ, यार मैं क्यों करूं, यार क्या मिल जाएगा करके, वो चीज आपको माइंड से निकालनी होगी। तभी शायद आप आने वाले दिनों के लिए एक ग्रीनर और अच्छे प्लैनेट की कामना कर सकते हो। घर में एक बिस्किट का पैकेट ले आना, उसकी पॉलिथीन को डस्टबिन में डाल देना नहीं, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो चीज ला रही हूँ, जैसे कि नीलिमा ने कहा कि वो सब्जी लेने जाती है तो वो टोक के पूछ लेती है। मुझे लगता है कभी कभी ना बेशरम होना पड़ता है, सामने वाले को टोकना पड़ता है कि क्यों भाई, एक थैली लेने में कितना मुश्किल आता है। मेरे को मतलब बहुत अच्छे से याद है, यहाँ पर मैं सब्जी लेने जहां जाती हूँ, एक ट्रक की तरह आता है, एंड वो सब्जी जो है वहां पर सब लोगों को या तो टोकरी में लेना होता है या फिर कैरी और ओन बैग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग वहां पर अपने घर से थैली लेकर आ रहे हैं, कभी कभी प्लास्टिक की थैली भी रीयूज कर रहे हैं, कभी कभी, लेकिन अपनी लेकर आ रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग द सेलर कि मुझे थैली दे दो। यू हैव टू एंश्योर कि घर से एक थैला लेकर आना ही आना है, सब्जी उसी में जाएगी। आई थिंक ये ना कंपलसरी हो जाना चाहिए, बिकॉज अब इतनी चीजें, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। लोग मांगते हैं पॉलिथिन, इसलिए वो सेलर भी दे रहा है। आई थिंक डिमांड जब कम हो जाएगी ना, जब इंडिविजुअल लेवल पे इंसान कहेगा कि नहीं, मैं पॉलिथिन को मना करूंगा, नहीं, मैं अच्छा क्लीनर या अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट ही यूज करूंगा, आई थिंक तभी वो शुरुआत होगी। एंड यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब बाय कन्विंसिंग सो मेनी पीपल, बाय स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू गिव द सॉल्यूशंस विद योर वर्कशॉप्स, विद योर DIYs। एंड लिसनर्स, इनका इंस्टाग्राम हैंडल जरूर चेक करिए, शी इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग एंड शेयरिंग द अवेयरनेस। चाहे आपके फिर कंपोस्टिंग या बायो एंजाइम को लेकर क्वेरीज है, चाहे आप जिस तरह की उन्होंने कहा कि वो थाने में बर्तन बैंक प्रोवाइड कर रही है। ओके, हाँ, बर्तन बैंक को लेकर एक चीज और बताना चाहूंगी, लाइक थाने में तो आप ऑफकोर्स नीलिमा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी सिटी में भी लोकली अगर गूगल करें या व्हाट्सएप चेक करें, देयर आर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग दिस इन योर कॉलोनी। हिचकिचाना नहीं है, स्टील बुरा नहीं होता है। हमने एक जबरदस्ती का ना स्टैंडर्ड सेट कर दिया लोगों ने कि ओ डिस्पोजेबल लेके फेंक दिया, ओ काम खत्म हो गया। आई थिंक नहीं, उस स्टैंडर्ड को तोड़ना होगा अगर हमें अर्थ को कंजर्व करना है, नेचर को खूबसूरत रखना है और लैंडफिल्स को रिड्यूस करना है जो कि बढ़ते जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे। एंड वंस अगेन कुडोज नीलिमा, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग। एंड लिसनर्स, अगर आप देखेंगे ना तो नीलिमा ने अपनी साइट पे, इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत अच्छी सी चीज लिखी है कि सो नीलिमा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एम्स एट हेल्पिंग यू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। टेल अस योर फैमिली साइज, how much waste your house generates,
types of waste and she will propose different solutions to choose from. And this is something really beautiful कि आप अपनी लाइन पर बिल्कुल सही उतर के आ रही हैं, providing the sustainable solutions. And Nilima, once again, wish you all the best and thank you very, very much for being on the show and sharing your journey with us. Thank you, Prachi. Thank you for this opportunity. For maybe again learning, everyday learning. So I'm glad I could help you all, and let's connect more and more people Well, I'm in sure this journey, because it's a fun journey. ऐसे कोई ये नहीं है दिक्कत, मतलब थियोरी नहीं है या बहुत डिफिकल्ट नहीं है. It's easy. yes, कर सकते हैं. ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं. घर का ही कचरा है, घर का ही वेस्ट है, उसको घर में ही ट्रांसफॉर्म करना है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नीलिमा जैसे बहुत से लोग अवेलेबल हैं. नीलिमा इज ऑलवेज अवेलेबल. उनके हैंडल सारे मैं इस ब्लॉग पोस्ट में नीचे आपको प्रोवाइड करूंगी. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हर. एंड वंस अगेन नीलिमा, थैंक यू. कीप डूइंग द ग्रेट वर्क. अपनी एनर्जी लेवल्स को कभी कम मत होने देना. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग डियर. Thank you so much. Thank you. खत्म करने से पहले एक कोट और बताना चाहूंगी कीरा सिम्पसन की, जो आई एम श्योर कि नीलिमा की जर्नी के साथ बहुत कनेक्ट करती है, कि वी कैन सिट बैक, डू नथिंग एंड वॉच अवर प्लैनेट बी डिस्ट्रॉयड, और वी कैन टेक एक्शन, become advocates and start making lifestyle choices which are kinder to people and the planet. And I'm sure नीलिमा आपकी जर्नी ना इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है कि खाली बैठना और कुछ ना करना बहुत आसान है, लेकिन वो इंसान बनना जो हिम्मत करके उठता है, लाइफस्टाइल चॉइसेस में चेंज लाता है, सस्टेनेबिलिटी को चूज करता है, जो कि प्लैनेट एंड पीपल दोनों के लिए काइंड है. तो थैंक यू नीलिमा वंस अगेन. ग्रीन तत्वा टॉक्स पर आज इतना ही. तत्व गर्ल विल बी बैक विथ मोर इंफॉर्मेटिव सस्टेनेबल स्टोरीज. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सस्टेनेबल रहिए, सस्टेनेबल चॉइसेस को देखते रहिए, समझते रहिए, और रोज एक कोशिश जरूर कीजिए एक सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने की, चाहे वो इतनी सी ही क्यों ना हो. क्योंकि जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने से बेटर है थोड़ा सा एक स्टेप और छोटी सी कोई चीज की जाए. बहुत ही सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बस करने की जरूरत है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, नमस्कार. Thank you. Thank you.